Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to speech processing. So, as we discussed in the last class, that this should be considered as the first lecture on speech processing. Um, I'll be doing a series of these introductory lectures first, and it may take me multiple videos to do this, but throughout this period, don't believe that we are wasting any time and we're still on introduction. We'll be learning a lot of new stuff in our introductory lectures that when we will revisit those concepts. So this course is designed in layers. So we will be visiting every concept, or at least most of the concepts, multiple times, and we'll visit it once and look at it at a superficial level of detail, and then we're gonna look at it again at a later stage, and we'll look at it in more detail, and so on and so forth, until we have really solidified, inshallah, really solidified the concepts and really reached a point where we're able to understand what speech is all about and how is it processed, and what are the interesting things that we can do with this. So the main theme of this first video is to introduce you to sound, because this course is about speech, so it's natural that we should start with sound. So my first question to you is, have you ever seen sound? And I don't mean whether you have seen a depiction of sound, a diagram of sound, an animation of sound. Because we're about to study sound in detail and then speech in detail, it is natural that we should begin by convincing ourselves that it is there, although you're hearing me, but if you have never seen it, then we can never reach that same level of confidence about it. So let's fix that. I'll show you a video in the next slide, and then we'll continue right after that video. I'm going to show you the sound of a clap. And I don't mean some digital depiction of a clap. I mean that when this man's hands come together, you're going to see something that is normally invisible. You're going to see the actual sound wave leaving his hands and traveling outward at 761 miles per hour, the speed of sound. And here it is again. How is this possible? Well, I'll start the explanation not with sound, but with the heat from a lighter. There's a puff of butane, sparks fly, and the fuel ignites. But that shape billowing up from the flame isn't smoke. That's normal air that has been expanded by heat. We're able to see the density change thanks to a technique called Schlieren flow visualization. Here's how it works. You start off with a light shining through a single slit. If you reflect that light off a parabolic mirror, all the rays become parallel, and then you can use another parabolic mirror to refocus the light down to a single focal point, and then in through the lens of a camera to make a picture. Now here's the trick. You place some sort of barrier right at the focal point. Now you add something that will distort the air, like a candle. The candle will block light rays, making a silhouette, and the flame will make light. But rising heat will change the density of the air above the lighter, and that will bend the light rays. The bent light ray won't pass through the focal point. It will be blocked by the barrier, and the picture will be darker. This technique can be used to see anything that distorts the air, the heat from a hair straightener, for example. Even the heat coming off a human hand. Epidemiologists use it to study sneezes and coughs. Engineers use it to study aerodynamic flow. And sound, well, that's just another change in air density, a traveling compression wave. So Schlieren visualization, along with a high-speed camera, can be used to see it as well. Here's a book landing on a table. The end of a towel being snapped. A firecracker. An AK-47. And of course, a clap. Okay, so now that we have seen sound, the next big question is, what did we just see? ये तो हमें नजर आ गया कि we are seeing these ripples happening in the air, but what do these ripples represent? And what is sound? And what's the nature of sound? And that's the next big question. Before I go into that question, let me make it two things clear. Like this initial introductory video and like this series of introductory videos, I used to refer to them when I used to teach speech processing the last time. I referred to them as the movie night. So in these videos, you'll see a little bit less of me and a little bit more of these videos, because I've basically gathered these videos from these amazing sources, mostly from YouTube, where people have spent a lot of effort
on creating either the animations or some interesting sorts of visualizations of sound, and other phenomena. That is it. I probably won't be able to do as good a job of explaining that if I just do it in words or draw it. So it really helps when you see it happening the way it happens. And there will be places where I'll be actually playing special types of audio for you, to give you more immersive experience of what you're looking at. But you should, if you have time, it's beneficial that you should go and watch the videos on the original YouTube channels as well. One, I do not intend to play the whole videos for you. I'll just take like small snippets of various videos and put them in my lectures. So it's, if you have time, you should probably go and watch the rest of the video, which in most cases is also amazing. Secondly, it's also beneficial for the people who have spent all of the effort to create those videos. So it will be beneficial for their channels. If you have time, just go and visit the videos there as well. All right, so now coming back to our discussion, I have taken these snapshots from the video that you've just seen. So in the Schleiden flow visualization, now you know how it works, and it basically reveals to you the differences in the density of a fluid. So whenever there is a difference in the density of the fluid, that leads to refraction of light, and because light gets bent and refracted when it moves through mediums of different densities. You've already done that in quite a lot of detail in your at high school level, or whatever level of schooling you did before here. So it uses that bending of light to basically reveal the differences in density of a fluid. But why are there differences in the density of the fluid in which sound is traveling? All right, so look at this first picture, and you see here a speaker, and the speaker has a moving membrane. So the sides, the circumference of this circle is basically the moving membrane. So what's happening here is that this membrane is moving in and out, in and out, in and out, and there are air molecules in this whole area. And now when this moves outward, the molecules get bunched together, and when it moves back, it creates a rarefaction. So when it moves out, it creates a compression, and when it moves back, it creates a rarefaction. All right, so that series of compressions and rarefactions move out. So here you see this dark color is basically a compression, and it's succeeded by this rarefaction. So you get these series of compressions and rarefactions that move out. This is known as a compressional wave or a pressure wave. So sound travels as pressure waves or compressional waves. Technically, these are also called longitudinal waves. So you have studied two types of waves, longitudinal and transverse. I'll talk about that a little bit more on the next slide. But here, this is the basic idea of how things are happening. So think of a crowded room, like full of people. एंड यू जैसे कि आप लोग करते हैं ऐसे मौके के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं होती, कोई एक शख्स ने धक्का लगाया और वो धक्का जो है वो मूव करता हुआ कमरे के दूसरे एंड तक चला जाता है. सो एंड पीपल जो कि उस धक्के पे एक्सपोज होते हैं, दे कम क्लोजर टुगेदर, और जब वो धक्का गुजर जाता है तो यू आर लाइक अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द पर्सन जिससे आप टकराए थे जब धक्का लगा था. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर. सो द साउंड इज ट्रेवलिंग इन कंसेंट्रिक स्फीयर्स outwards from its source. Now, my next observation about this diagram would be that in case of this firecracker, you see a very dark band compared to here, the speaker, where the bands are not that dark. In case of the book which landed on the table, the band is darker at least than the speaker. And it's darker than the sound of the clap. So what would the density or the pressure, the magnitude of this pressure depend on? It will depend on how strong the push was. So if the push was really strong, as in case of the firecracker, there would be a very tight compression. The molecules will really bunch together, and that will result in a louder sound. And we will see over the course of this video, we'll be convincing ourselves of all of those things, and in various ways. And because this is really important that you understand these basic physics concepts before we reach the point where we go into the details of how speech is produced and how speech is perceived. So speech is a type of sound, like it's a class of sounds. So we need to really understand sound. All right, so another thing that we need to know about this is that this pressure wave weakens
as it moves away from the source. And then that makes sense, right? So the pressure, like धक्के वाली मिसाल ही ले लें कि अब धक्का आपने लगाया तो जाहिर है कमरे के एंड तक उतनी ताकत से नहीं पहुंचा जितना उस शख्स पे प्रेशर पड़ा है जिसको आपने धक्का दिया था उस क्राउडेड रूम के अंदर. So now as the sound propagates away from its origin, the intensity of these compressions and rarefactions both, because rarefaction के केस में चीज़ें एक दूसरे से दूर हटी हुई हैं जो यहाँ वाइट वाइट नज़र आ रहा है, और कंप्रेशंस के केस में मॉलिक्यूल्स बंच टुगेदर हुए हैं. दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इंटेंस हैं. इंटेंसिटी रेयरफैक्शन में कितना दूर यानी डेंसिटी कितनी कम हुई हुई है, और कंप्रेशन में कितनी ज़्यादा बंच अप हुआ हुआ है. एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, इट्स इंटेंसिटी गेट्स लोअर्ड as an inverse function of the distance, or in fact the square of the distance from the origin. So this intensity gets reduced. So the intensity is basically inversely proportional to the square of the distance from the source. इस वजह से ये चीज़ होती है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ये वाक़यात होते रहे हैं ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, या फिर जैसे सिलेंडर वगैरह के ब्लास्ट के वाक़यात होते हैं. सो पीपल हु आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द ब्लास्ट, और अभी मैं खाली उसके फिजिकल प्रोजेक्टाइल्स की बात नहीं कर रहा दैट कम आउट ऑफ द ब्लास्ट, और द श्रैपनल दैट गेट्स आउट फ्रॉम लेट्स से अ सिलेंडर जो कि फट जाता है गैस का, उसको छोड़ दें. सिर्फ साउंड वेव की बात करें तो पीपल हु आर रियली क्लोज टू द ब्लास्ट ऑफन गेट their eardrums punctured, तो कानों के पर्दे फटना जो होता है. Whereas people who are standing a little bit away from the blast do not get impacted in the same way. They get disoriented or some other things, and you will understand all of that why those things are related. लेकिन थोड़ा सा भी फासला बढ़ने से, because the intensity is reducing as a function of the square of the distance तो from the center, तो इस वजह से जो है वो थोड़े से डिस्टेंस के बाद भी काफ़ी साउंड की इंटेंसिटी कम हो गई होती है. अच्छा, बाय द वे, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अगर आप समझना चाह रहे हो ना, व्हाई इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रंट और द बंचिंग ऑफ द वेव फ्रंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उससे आप अपने जहन में सिर्फ ये ले आएँ कि द साउंड इज expanding in concentric spheres. So just think about the surface area of the sphere and you will understand why this spreading is leading to decrease in intensity by the square of the distance. ठीक है जी, ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में जाकर प्रॉपरली हम आगे पढ़ेंगे. But first let's really quickly talk about these longitudinal waves. So जो दो तीन चीज़ें आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में समझने की ज़रूरत है. सो हियर इन दिस विजुअलाइजेशन, और मैंने इसका सोर्स ऊपर दिया हुआ है, you can see this membrane moving back and forth. So think of it like the membrane of the diaphragm of a speaker, or it could be anything. It would be like a paper moving back and forth, but just it's moving with a frequency which comes in the audible range. In this case it was not, it was very slow. What you were hearing was basically the wrinkling of the paper, and we'll talk about that as well. But yeah, so this membrane is moving back and forth, but when it moves forward it bunches up these molecules, and then those bunched up molecules basically travel. So you can see it traveling, but what's traveling is not the molecules themselves but the energy. So the energy, the compression is traveling, whereas if you look at a single molecule, it's basically just moving to and fro in its position. Just like वो जो crowd की example थी, धक्का दिया था लेकिन ऐसा नहीं कि वो बंदा ही जाके दीवार से लगा है अगर पूरा कमरा भरा हुआ है, बल्कि वो pressure wave आगे चली गई. जो शख्स आपके सामने खड़े थे वो अभी भी खड़े हैं, जो आपको घूर के देख रहे हैं और आपको बुरा भला कह रहे हैं, rightly so. So by the way, don't act upon these things. These are examples to demonstrate a concept, not advice to practice in real life. बाद में आप कह रहे होंगे स्पीच के टीचर ने कहा था कि जी धक्का लगाना है. And don't even try it in a real crowd. So yeah, if you want to try it, by the way, you can just like अपने दोस्तों को जमा करें, लाइन में खड़ा करें, obviously पेंडेमिक वगैरह के बाद, वरना फिर आप कोई अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर लें जो एक जगह पर हो, उनको एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा करें, कंधे पे हाथ रखवाएं, and then पीछे वाले को धक्का दें and see how the धक्का travels through. So you can basically just try it with your friends. But yeah, so this compression wave is now traveling in this direction. The distinguishing aspect of a longitudinal wave is that the direction in which the energy travels is the same as the direction in which the component molecules or the component particles, whatever they are, in this case they're molecules, they also move in the same direction. So the to and fro is like that. So you can also think of these like each particle could be thought of like, and that's basically a very precise example, each particle could be thought of like a pendulum, and the pendulum is moving just back and forth. And if you just look at these, like a single molecule,
those of you who remember from their calculus and from their trigonometry, that this is moving in simple harmonic motion. So it's fastest when it's in the middle, and it slows down to a stop when it reaches the ends. So it's just moving like a pendulum, like what a suspended pendulum moves. So think of like this, a pendulum suspended from this position, and these are the two endpoints. So it eventually slows down at these endpoints, and its velocity is the maximum at its this center point. All right, so now you can think of them like all of these particles are suspended from like here outside of the screen into the screen, and now the wave is moving by basically transferring energy across these molecules, and these bunches are now moving away. All right, everything's clear? You can also see these longitudinal waves in case of a spring. So if you have like a slinky, उसके अंदर भी जब आप इस तरह से अगर उसको धक्का दें तो कंप्रेशनल वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती भी जाने लगती हैं. जो वेव लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है आप बेशक देख लें. सो इन दिस केस द वेव लेंथ इज द डिस्टेंस, and remember this, not the time, the distance of one complete cycle. So in this case जो cycle है वो इन्होंने शुरू किया हुआ है from the middle of the wave. So इस middle of the compression to middle of compression, आप इसको यहाँ से भी calculate कर सकते थे कि from the beginning of a rarefaction to the end of a compression. So this whole thing is one cycle. ठीक है, तो ये पूरा cycle कितने meters, यानी ये distance का metric है, wavelength. So what's the total distance covered by one particular wave? So आप एक spring यहाँ पर रख दें और उसके अंदर जब आप ये slinky में move करेंगे तो जितना एक पूरा का पूरा cycle जिसके बाद ये अपने आप को repeat करने लगता है, वो जितना distance ले रहा है, just measure it off the table, and that distance is the wavelength. एक wave की length कितनी है. इससे एक मिलता जुलता apparently, not really, but मिलता जुलता apparently concept है time period का, लेकिन उसमें access different होता है. उसमें हम एक cycle का time देख रहे होते हैं. What's the time taken for a wave to complete its complete cycle? ठीक है, वो एक different concept है, लेकिन ये पता है आप mix तब करते हैं जब आपको एग्जाम में आता है कि मैं बनाकर दूंगा और कहूंगा कि जी इस ग्राफ के ऊपर बताएं कि ये क्या चीज है, एंड यू गोना से इट्स वेवलेंथ विदाउट लुकिंग एट कि जी जो एक्सिस जिस पे आप उसे देख रहे थे वो टाइम था. ठीक है, बट खैर एनी हाउ we'll talk more about that. In this slide, all you need to really learn, in addition to what I've just said, but the one takeaway, the basic takeaway is that longitudinal waves के केस में wave जिस direction में move कर रही होती है, energy जिस direction में transfer हो रही होती है, उसी direction के अंदर particles जो हैं move कर रहे होते हैं, उसी plane में particles move कर रहे होते हैं. ठीक है, all right. The other type of waves that you have heard of and seen are these, the transverse waves, where the particles are, the direction of motion of the particles is perpendicular to the direction of the direction in which the energy is traveling. So the energy is traveling in this direction, but the particles are moving up and down. राइट, और इस केस में ये समझना भी थोड़ा सा और आसान हो जाता है देखकर भी कि कोई पार्टिकल अपनी जगह से ना इस डायरेक्शन में जा नहीं रहा है जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, हर एक अपनी जगह ही मूव कर रहा है, बट द एनर्जी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अच्छा ये ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स भी, फॉर एग्जांपल एक धागा रस्सी लें, दीवार में बांधें, उसको ऐसे करके मूव करें, या पाइप जमीन पे रबर का पड़ा हुआ है उसको मूव करें, यू कैन सी द वेव ट्रैवलिंग थ्रू इट. या मिसाल के तौर पर सरफेस के ऊपर जो वेव्स होती हैं लाइक रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब अंदर वाटर की बात नहीं कर रहे जिसमें कंप्रेशन वेव्स ट्रैवल करती हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर रिपल्स ट्रैवल करती हैं, दे आर लाइक ट्रांसवर्स वेव्स. इसी तरह लाइक फॉर एग्जांपल हमने आगे जाकर ना सिस्मोलॉजी की भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, हम ज़लज़लों की भी बात कर रहे होंगे. सो वहाँ पर जाकर हम ये भी देखेंगे कि एपिसेंटर लोकेशन कैसे होती है, जियो लोकेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह. तो विल सी एट दैट पॉइंट कि एक ज़लज़ले के केस में दोनों किस्म की वेव्स जनरेट होती हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी जनरेट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स भी जनरेट होती हैं. तो बाय द वे जब मैं कंप्रेशनल वेव, प्रेशर वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता हूँ तो वो तीनों एक ही चीज़ हैं जो कि पिछली स्लाइड में देख कर आए. दे आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग, बट आई यूजुअली मीन the same thing when I discuss them until मैं अगर कभी उनको अलग करने लगूंगा. Whereas in case of transverse waves जब हम कह रहे हैं तो those are these जो sound नहीं है. So sound transverse wave नहीं होती, लेकिन फिर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आना चाहिए अगर नहीं भी आ रहा, वो सवाल ये आ रहा होगा कि आपने जब भी साउंड की डायग्राम बनी हुई देखी है तो वो इस किस्म की देखी है. ये क्या बात हुई कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पिछले काफ़ी देर से, अब तो 16 मिनट से, कि जो है वो साउंड इज बेसिकली कंप्रेशनल वेव एंड इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेयर एज यू हैव सीन डायग्राम्स एंड यू हैव बेसिकली एनालाइज डायग्राम्स ऑफ साउंड विच लुक लाइक दिस साइन वेव. तो ये अभी एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ इज साउंड एक्चुअली प्लॉटेड. लेकिन फिलहाल सिर्फ हम उन चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल जो मीडियम है. और एंड लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज एक्चुअली प्रीटी गुड. सो दिस इज व्हाट इज मूविंग अप एंड डाउन लाइक योर हैंड, जिसमें एक रस्सी को आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और ये जो
आपका किसी भी एक पार्टिकल को अगर आप देखें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऊपर नीचे. इट्स लाइक अ पेंडुलम. सो अगेन इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ पेंडुलम्स. इन दिस case the pendulums are not moving like this, the pendulums are moving like this. That's the difference. और wavelength बिल्कुल उसी तरह डिफाइन हो रही है provided कि यहाँ पर हम distance देख रहे हैं, distance s let's say या d, तो हम यहाँ डिस्टेंस देख रहे हैं तो देन एक वेव का जो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक का डिस्टेंस है, और वो हम किसी भी तरह शुरू कर सकते हैं, पीक टू पीक भी देख सकते हैं, ट्रॉफ टू ट्रॉफ भी देख सकते हैं, और उसको हम बेसिकली जो है वो एक साइकिल के स्टार्ट से लेकर एंड तक भी देख सकते हैं. दोनों तरह से इसको तमाम तरीकों से मेजर कर सकते हैं. ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं. बाय द वे अगेन यहाँ पर कुछ मजीद डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं. एक एम्पलीट्यूड की लिखी हुई है. सो एम्पलीट्यूड जो है जो मैक्सिमम पीक ये अटेन कर रहा है वहाँ तक का जो फासला है इसको हम इसका एम्पलीट्यूड कह रहे हैं. इन जगहों को हम ट्रॉफ्स कह रहे हैं, इन जगहों को हम क्रेस्ट्स कह रहे हैं या पीक्स कह रहे हैं, और वेवलेंथ को देख रहे हैं. लेकिन अगेन आगे जाकर काफ़ी तफसील से हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है. एक रिवीजन करेंगे हम कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है. अभी थोड़ी देर में इस रिवीजन को भी करते हैं. इनफैक्ट दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू, वेयर आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो, एंड दिस इज फ्रॉम खान अकेडमी, वेयर एंड विल बी यूजिंग अ बंच ऑफ वीडियोज, इंट्रोडक्टरी वीडियोज जो उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई हैं, जिससे हम कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाएंगे. और ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बीच में जो एक अपेरेंट रिलेशनशिप है, रियल नहीं है यहाँ पर ये, लेकिन सिर्फ ये है कि साउंड है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन जब आप उसको बनाते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो आप उसको एक साइन वेव के फॉर्म में कर रहे होते हैं. तो ये किस तरह से हो रहा है, तो इस चीज़ को देखना हम शुरू करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Check out this speaker. If we plug it in, it makes sound. The way this speaker creates sound is by moving the front of the speaker, which is called the diaphragm, back and forth rapidly. Scientists often use the word oscillation to refer to the back and forth motion of an object. This speaker's oscillating too fast for the human eye to see, but if I put a piece of paper on the speaker, we see that because the diaphragm is oscillating, it's bumping into this piece of paper and causing it to dance. The oscillation of the diaphragm will also cause the air in front of the diaphragm to move back and forth. But here's the interesting thing. The air in front of the diaphragm doesn't actually travel away from the speaker. The air molecules in front of the speaker just oscillate back and forth. So how can you hear the sound from a speaker if the air next to the speaker doesn't actually make it to your ear? Well, the reason is that the oscillating air in front of the speaker causes the air in front of it to also oscillate. This causes the air in front of that air to start oscillating, which causes the air in front of it to start to oscillate, until finally the air that's actually next to your ear and your eardrum start to oscillate back and forth. This oscillating air that's next to your ear is moving, so it has kinetic energy. So it can transfer energy into your eardrum, which you can perceive as sound. So this speaker was able to transport energy through the air without actually having to transport the air itself. This is an important enough fact for me to state again. Energy is traveling across the room here, but air itself is not traveling across the room. Only the disturbance within the air is traveling across the room. If air were being transported across the room, it'd be better characterized not as sound, but as wind. So this is why we call sound a sound wave, because it shares the defining feature of waves, which is being able to transport energy through a medium without having to transport the medium itself. Medium is a fancy word for the material or substance through which a wave is traveling. Air is typically the medium for situations involving sound waves, but sound waves can travel through all kinds of different materials, like water, metal, or even human flesh and bone. And the fact that sound can travel through human flesh and bone explains something you might have always wondered about, which is, why do our voices sound so different on audio and video recordings? The reason for this is that when we're speaking to someone, we actually hear two contributions from our voice. We hear the sound wave traveling out of our mouth, through the air, and into our ear. But we also hear the vibration of the sound wave traveling through our flesh and bone, through our skull, and into our eardrum. But on an audio or video recording, the only part that's recorded is the sound that travels through the air. So when you hear your voice played back on an audio recording,
You only hear what other people hear when they listen to you. So the bad news is that, yes, what you hear on audio recordings is actually what you sound like to other people. But the good news is that most of your friends probably don't think it sounds weird, since that's the only voice they've ever heard you use. Alright जनाब, so basic idea तो अब आपके जहन में hopefully काफ़ी clear हो गया होगा. I have tried to repeat it multiple times so that अब इसके अंदर कोई confusion ना रहे कि sound है क्या और ये travel किस तरह करती है. अच्छा, आपने ये भी अभी सुना कि ये various mediums में से travel करती है. If I ask you कि if I have let's say a solid, a liquid and a gas, और मैं सिर्फ आपसे वैसे ही ये जानना चाहूँ कि can you think कि अगर इनमें तीनों में sound travel कर रही हो तो क्या उसकी speed में कोई difference होगा? If it travels through a solid, liquid and a gas, would there be any difference in the speed of sound in these mediums? क्या speed same रहेगी या speed change होगी? So I'm just leaving you with this question. I'm not answering this question for you here. And let's move on to the next video where we're going to now look at the various things that of interest that we measure about sound. So the frequency of sound and amplitude of sound and wavelength and all of that. So hopefully after that video we'll be in a position where we can now start talking about these things in an informed manner. This is what a sound wave sounds like. But what does a sound wave look like? Well, the air through which the sound wave is traveling looks something like this. But if you want another visual representation of the sound, we can hook this speaker up to an oscilloscope and it gives us this graph. We say that this shape represents the sound wave because if we focus on a single molecule of air, we see that it moves back and forth just like a sine or cosine graph. The horizontal axis here represents time, and the vertical axis can be thought of as representing the displacement of that air molecule as it oscillates back and forth. The center line here represents the equilibrium position or undisturbed position of that air molecule. If we turn up the volume, we see that the oscillations become larger and the sound becomes louder. The maximum displacement of the air molecule from its undisturbed position is called the amplitude. Be careful, the amplitude is not the length of the entire displacement. It's only the maximum displacement measured from the equilibrium position. Another key idea is the period of a sound wave. The period is defined to be the time it takes for an air molecule to fully move back and forth one time. We call this back and forth motion a cycle. We measure the period in seconds, so the period is the number of seconds it takes for one cycle. We use the letter capital T to represent the period. If we decrease the period, the time it takes for the air molecules to oscillate back and forth decreases, and the note or the pitch of the sound changes. The less time it takes the air molecules to oscillate back and forth, the higher note that we perceive. An idea intimately related to the period is called the frequency. Frequency is defined to be 1 over the period. So since the period is the number of seconds per oscillation, the frequency is the number of oscillations per second. Frequency has units of 1 over seconds, and we call 1 over a second a hertz. Typical sounds have frequencies in the hundreds or even thousands of hertz. For instance, this note, which is an A note, is causing air to oscillate back and forth 440 times per second, so the frequency of this A note is 440 hertz. Higher notes have higher frequencies, and lower notes have lower frequencies. Humans can hear frequencies as low as about 20 hertz, and as high as about 20,000 hertz. But if a speaker were to oscillate air back and forth more than about 20,000 times per second, it would create sound waves, but we wouldn't be able to hear them. For instance, this speaker is still playing a note, but we can't hear it right now. Dogs could hear this note though. Dogs can hear frequencies up to at least 40,000 hertz. Another key idea in sound waves is the wavelength of the sound wave. The idea of a wavelength is that when this sound is traveling through a region of air, the air molecules will be compressed close together in some regions and spread far apart from each other in other regions. If you find the distance between two compressed regions,
That would be the wavelength of that sound wave. Since the wavelength is a distance, we measure it in meters. Be careful, people get wavelength and period mixed up all the time. The period of a sound wave is the time it takes for an air molecule to oscillate back and forth one time. The wavelength of a sound wave is the distance between two compressed regions of air. People get these mixed up because there's an alternate way to create a graph of this sound wave. Consider this: before the wave moves through the air, each air molecule has some undisturbed position from the speaker that we can measure in meters. This number represents the equilibrium undisturbed position of that air molecule. Then, as the sound wave passes by, the air molecules get displaced slightly from that position. So an alternate graph that we could make would be the displacement of the air molecule versus the undisturbed position or equilibrium position of that air molecule. This graph would let us know for a particular moment in time how displaced is that air molecule at that particular position in space. This graph shows us that in some regions the air is displaced a lot from its equilibrium position, and in other regions the air is not displaced much at all from its equilibrium position. For this kind of graph, the distance between peaks represents the wavelength of the sound wave, not the period, because it would be measuring the distance between compressed regions in space. So be careful, for a sound wave, a displacement versus time graph represents what that particular air molecule is doing as a function of time. And on this type of graph, the interval between peaks represents the period of the wave. But a displacement versus position graph represents a snapshot of the displacement of all the air molecules along that wave at a particular instant of time. And on this type of graph, the interval between peaks represents the wavelength. ऑलराइट जी, सो इस पिछली वीडियो के अंदर अब हम जिन कॉन्सेप्ट्स को देख कर आए हैं, एंड आई होप कि अब तक अब वो कॉन्सेप्ट्स आपको इतने क्लियर हो चुके हैं कि खाली आपको फॉर्मूले याद नहीं है. बाय द वे, लर्निंग फार्मूलाज जस्ट रोट लर्निंग देम इज नेक्स्ट टू अ कार्डिनल सिन इन साइंस. सो लिहाजा फार्मूलाज को समझ के अगर आपको याद हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर बगैर समझे याद हैं तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस सेमेस्टर में. सो ये कॉन्सेप्ट्स आप होपफुली आपके जहन में क्लियर हैं जो यहाँ पर लिखे हुए. मैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर की बात मजीद कर लूँ. हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया करेंगे एफ से, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, एम्पलीट्यूड को ए से और वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्डा से. सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर आएगा स्पीड का, उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे. और अभी हम इससे आगे जाकर देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में भी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड दैट बेसिकली ब्रिंग्स इन द स्पीड ऑफ साउंड. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन हम पहले उस पर अपने आप को कन्विंस करेंगे और उसके बाद उसकी बात करना शुरू करेंगे. ठीक है जी. तो एक चीज़ तो ये हो गई. इसके साथ साथ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देख आए हैं बिटवीन frequency and time period. You know कि frequency is number of cycles per second, and cycles per second को हम hertz भी कहते हैं. 1 cycle per second is 1 hertz. और time period is basically एक cycle को कितना time लगता है, तो number of seconds per cycle. ठीक है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर मैं आपके सामने एक नई तरह का ग्राफ बनाना चाहूँगा. सो लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है विच इज़ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम, एंड लेट्स से कि ये मेरे पास सेकंड्स हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये ग्राफ कुछ इस किस्म का है, कुछ इस किस्म का ये ग्राफ है. सो इट्स अ प्योर साइन वेव. इट्स नॉट वेरिंग इट्स प्रॉपर्टीज अक्रॉस टाइम. ये बाय द वे ये एक रेयर चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों में आ रही है. ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में ज़रा कम मिलती हैं कि जो टाइम वेरिंग ना हो. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और अ टाइम इनवेरिएंट वेव जो वक्त के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी तब्दील नहीं कर रही. सो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रह रही है, इसका एम्पलीट्यूड भी सेम रह रहा है, सब कुछ इसका सेम रह रहा है as time passes. Is called a pure sine wave. So in this case, if this is 1 second and 2 second and 3 second and 4 second and so on and so forth, so what would be the frequency of this wave? It would be 1 cycle per second, so 1 hertz. 1 hertz की प्योर साइन वेव है. अच्छा, अब एक और किस्म का ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा. उस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रादर देन टाइम फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मैं थोड़ा सा भी इसको ओपन रखूंगा
कि हम किसी भी तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड पावर भी हो सकती है, ये कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, इंटेंसिटी भी हो सकती है, ये बात हम बाद में करेंगे। फर्ज कर लीजिए कि बस ये फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा मौजूद थी उस वेव के अंदर, ये रिलेटिव भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो इस फ्रीक्वेंसी की वेव की कितनी प्रेजेंस थी उस सिग्नल में जो सिग्नल मेरे पास मौजूद है। नाउ इन केस ऑफ दिस सिग्नल, अच्छा अब ये जो ग्राफ होगा इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यू हैव लाइक 0 हर्ट्ज एंड यू हैव 1 हर्ट्ज and you have 2 and 3 and 4 and so on and so forth, right? frequencies हैं सारी की सारी। so अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऊपर वेव नज़र आ रही है ये नीचे वाले ग्राफ में प्लॉट किस तरह होगी, तो आप क्या करेंगे? पहली चीज़ ये है कि इसमें खाली एक सिंगल साइन वेव है प्योर 1 हर्ट्ज की, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ होना है और लिहाजा यहाँ पे एक लाइन बनेगी एंड द हाइट ऑफ द लाइन विल बेसिकली डिपेंड ऑन कि मैंने मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट किया, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको सिखाया नहीं। सो बस ये समझ लें कि इस वेव के लिए एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि खाली से एक मैग्नीट्यूड के ऊपर होगी। सच अ ग्राफ जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज की कंट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं एक सिग्नल के अंदर, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वर्टिकल एक्सिस पे सम मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है या कंट्रीब्यूशन होता है, इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। और ये टर्म आपने इससे पहले सुनी हुई है, यूज भी की हुई है। सो यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू हैव फ्रीक्वेंसीज, और उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो विजिबल लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, या हम यहाँ पर वेवलेंथ्स भी बना सकते हैं। सो बाज़ दफ़ा ये ग्राफ बनता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, बाज़ दफ़ा स्पेक्ट्रम का ग्राफ आप वेवलेंथ के साथ भी बना सकते हैं। दैट विल आल्सो मेक सेंस, बट इन लेट्स से फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कुछ वेव्स हैं वो इधर हैं और ये लोअर फ्रीक्वेंसीज इधर हैं। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज हम देख सकते हैं वो रेड्स हैं लेट्स से, और जो हाईएस्ट हम देख सकते हैं वो वायलेट्स हैं। रेड से कम की फ्रीक्वेंसीज को हम इंफ्रारेड्स कहते हैं, वायलेट से हाई की फ्रीक्वेंसीज को हम अल्ट्रा वायलेट्स कहते हैं। ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है जो आपने देखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर वो आपके सारे के सारे जो हम कलर्स भी बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर्स हैं, एंड दे बेसिकली मर्ज इनटू ईच अदर एंड ऑल ऑफ दैट। सिमिलरली there is a limited spectrum of sounds that we can hear. So and that goes from, अभी आप इसलिए वीडियो में भी देख कर आए हैं और इस पे आगे जाकर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करना है, और वो है कि ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज दी लिमिट, और इसकी भी हम बात करेंगे कि ये कितनी एक्यूरेट है या कितनी, क्या ये स्टेटिस्टिकली खाली हमने मीन्स लेके निकाली हुई है, विच इज़ ट्रू। तो ये वो जर्नल लिमिट है जिसके अंदर ह्यूमन हियरिंग काम करती है, कि 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो हम परसीव नहीं कर सकते, ये मौजूद भी होंगी तो हम इनको सुन नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो लिहाजा अगेन, सो दिस ग्राफ जिसके ऊपर ये चीज़ शो हो रही है, दिस इज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है, और सिमिलरली ये भी एक स्पेक्ट्रम है। सो अब आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। we'll be talking about graphs which are basically time graphs, and you'll be talking about frequency graphs. frequency graphs वो होंगे जिसमें हम कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज को देख रहे होंगे और उनकी कंट्रीब्यूशन को देख रहे होंगे। टाइम ग्राफ वो होंगे जिसमें हम टाइम के साथ साथ उस वेव को देख रहे होंगे कि वो कैसे चेंज होती है। और आज ही हमने इसी वीडियो के अंदर ही होपफुली हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पे विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टार्ट लुकिंग एट वेरियस टूल्स दैट विल बी यूजिंग टू विजुअलाइज एंड टू एक्चुअली मेजर these frequencies and these waves and to plot them and so on and so forth. But yeah, that's just a basic introduction. फर्ज करें अगर ये साइन वेव ऐसी होती कि इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसीज होती, ठीक है, कोई इस किस्म की साइन वेव होती कि यूं जा रही होती, या इससे भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट साइन वेव होती, तो इस किस्म की साइन वेव के केस में मेरे स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो दो लाइंस होती हैं। अगर इसमें 3 साइन वेव्स होती, 4 साइन वेव्स होती या 4000 साइन वेव्स होती, तो मेरा ये जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्पेशल ग्राफ्स हैं जिनकी बात बड़ी जल्दी आने वाली है। मैं आई कैन नॉट रेजिस्ट मेंशनिंग देम, इतने वो मौज़िज़ चीज़ें हैं हमारे लिए कि उनका एक दफ़ा जिक्र ज़रूर मुझे करना पड़ेगा। 2 आवाज़ें हैं जिनके ग्राफ हमारे लिए बड़े ज़रूरी होंगे, और वो आवाज़ें मैं आपको विदाउट शर्माए सुनाना चाहूँगा। द फर्स्ट साउंड, या किसी और अंदाज से, इस किस्म की साउंड को हम इम्पल्स कहते हैं। ये साउंड ने अपने आप को रिपीट नहीं किया, ये साउंड सिर्फ एक दफ़ा आई, और ये साउंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगी। आप में से जो लोग मशीन लर्निंग पढ़ के आए हैं ना, वो वहाँ पर जाकर कहेंगे कि जी ये तो वही डेल्टा फंक्शन है जो आपने हमें पढ़ाया था। येस, इट इज़ अ डेल्टा फंक्शन, लेकिन ये डेल्टा फंक्शन यहाँ इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको हम इम्पल्स फंक्शन कहते हैं, कि ये हमारा वो
वो मीटर होगा जो हमें सिस्टम्स रिवील करके दिया करेगा कि अकूस्टिकली ये सिस्टम्स कैसे हैं, ठीक है। और यूं समझे कि एक थानेदार है और उस थानेदार के सामने जब भी मैं कभी किसी मुजरिम को बिठाता हूं या मुलजिम को बिठाता हूं, वो सब उगल देता है। सो ये इंपल्स फंक्शन हमारा वो थानेदार होगा कि जिसके सामने जब भी कोई सिस्टम में रखूंगा वो ये बता देगा मैं किन फ्रीक्वेंसीज पे रिस्पॉन्ड करता हूं, मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या हैं और किन को मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, किन पे रेजोनेट करता हूं। ये सब वर्ड्स आगे जाकर आएंगे एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इन अ लॉट ऑफ डिटेल। अभी आप तंग आ गए होंगे जितनी डिटेल में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कराया, ऐसे ही मैं हर चीज से आपको तंग आने की हद तक इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे, बिकॉज वी वांट दीज कॉन्सेप्ट्स टू बी लिटरली वायर्ड इन योर ब्रेन, वी वांट टू रीवायर योर न्यूरॉन्स। तो खैर, तो मैं बता आपको रहा था, एक तो हो गया इंपल्स फंक्शन, और इस रिस्पांस का वो जो मुजरिम आगे से देता है ना, फर्ज करें थानेदार का नाम हमीद है, तो अगर ये कहें कि जब हमीद को बिठाते हैं मुजरिम के सामने, तो मुलजिम हमेशा या मुजरिम ऐसे बोल देता है कि उसे हम हमीद रिस्पांस कहते हैं, कि ओनली हमीद कैन गेट दैट रिस्पांस। तो इस रिस्पांस का भी एक नाम है, इसको हम इंपल्स रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। और अभी आज ही उसकी बात शुरू हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द इंपल्स। द सेकेंड साउंड जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा इज दिस साउंड, या नॉइज, रैंडम नॉइज। ऐसी साउंड जिसके अंदर शायद सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, और ये अभी तो मैंने शायद कहा है ना, ये शायद मैं थोड़ी देर में हटाता हूँ, बट आई विल शो यू कि ये सब मौजूद हैं। ये दो आपस में बहुत मिलती जुलती चीजें हैं, रैंडम नॉइज और इंपल्स फंक्शन, और ये भी हम देखेंगे क्यों मिलती जुलती हैं, और इन दोनों के नतीजे में हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम्स आएंगे। सो या आई विल लीव इट एट दैट। दिस इज जस्ट अ स्पॉइलर टू जस्ट आई डोंट नो whet your appetite for what's about to come in your direction. And with that, let's move on to another video जिसके अंदर वो जो अब बचा हुआ relationship है, the relationship between your wavelength and your frequency, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, and then we'll come back and then we'll start talking about other interesting stuff. If we let a speaker make one short burst, we'll create a pulse wave. We can find the speed of sound by looking at the speed of this compressed region as it travels through the medium. In non-humid air at 20 degrees Celsius, the speed of sound is about 343 meters per second, or 767 miles per hour. We can also watch the speed of sound of a repeating simple harmonic wave. The speed of the wave can again be determined by the speed of the compressed regions as they travel through the medium. Note that the speed of sound does not mean the speed of the air molecules as they move back and forth. The air molecules are moving with a speed, but by the speed of sound, we mean the speed of the disturbance as it moves through the air molecules. We call sound a longitudinal wave because the wave is traveling parallel to the line traced out by the oscillations of the medium. The other type of wave is a transverse wave. Transverse waves happen when the wave velocity points perpendicular to the oscillations of the medium. Waves on a string or waves on the surface of water are examples of transverse waves. If we look at a graph of the air displacement versus position of the air, we can see that as the wave travels, the shape of this wave travels to the right. So the speed of a sound wave can be found by finding the speed of the peaks, or the speed of the valleys, or the speed of any single point on the wave shape. To figure out a formula for the velocity of a sound wave, let's look closely at what's happening here. Watch one of the air molecules. It takes one period for this molecule to move back and forth through a full cycle. During this time, the wave shape has moved forward one complete wavelength. This is because the wave has to overlap with its initial shape after one period, because the molecule has to be back where it started after one period. Now, since speed is defined to be the distance per time, the speed of a sound wave has to be the wavelength of the wave divided by the period of the wave, since the wave is traveling forwards one wavelength per period. Or, since the frequency is defined to be 1 over the period, we can rewrite this formula as speed equals wavelength times frequency. This formula is accurate for all kinds of waves, not just sound waves, because a wave has to move one wavelength for every period. Be careful. When looking at this equation, you might think that if you adjust the setting on your speaker and increase the frequency, you'd also be increasing the speed of the sound wave. But that's not what happens. If you increase the frequency, the wavelength will decrease by that same factor, and the speed of the sound wave will remain the same.
In fact, there's nothing you can do to the speaker that would increase the speed of sound. So how can we change the speed of sound? Well, the only way to change the speed of sound is to change the medium or the properties of the medium that the sound wave is traveling in. So to change the speed of sound in air, you can change things like the temperature of the air or the humidity of the air or the density of the air. Or you can swap out the air entirely for another material like water or helium or a metal. All of these changes to the medium would affect the speed of sound. People often think that changing the amplitude will change the speed of a sound wave, but it won't. If we create a sound pulse with a large amplitude, it won't travel any faster than a sound pulse with a small amplitude in the same medium. It will just be louder. In other words, yelling won't cause anyone to hear you faster. They'll just hear a louder sound when the sound wave arrives at their location. So remember, the speed of a sound wave is determined entirely by the properties of the medium through which it's traveling. Alright, so अब से थोड़ी देर पहले I left you with a question and I hope you had time to think over that question. और वो question था about the speed of sound through various media. कि डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस के अंदर एंड लेट्स से सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर साउंड की स्पीड में कोई डिफरेंस होगा और कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा या काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा एंड व्हाई वुड देयर बी अ डिफरेंस. सो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन सोचने को कहा था और उसके लिए जिस बुनियादी चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो इसकी चीज़ को नोट करने की थी और अब जवाब तो आपके पास है. अब मैं जवाब रिवील करने लगूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जस्ट नोटिस कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सॉलिड है और सॉलिड के अंदर वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स आर रियली बंच्ड अप टुगेदर. ये कमरा है जिसमें लोग भरे हुए हैं और बस एक दूसरे के साथ लगे खड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए खड़े हुए हैं. लाइक इन अ बस, जो भरी हुई बस में अगर आपको एक्सपीरियंस हो ट्रैवल करने का तो ये समझेंगे ये उसमें लोग जा रहे हैं, ठीक है. वेयर एज इन अ लिक्विड, सो दिस इज योर सॉलिड. बाय द वे आई अपोलोजाइज फॉर द not very nice drawings because मैंने camera on रखा हुआ है just to be a little bit interactive in these initial videos, और इसलिए I'm just drawing on the screen. In liquids the distances are a little bit more और मैं यहाँ बड़े इनको organize करके बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता. So let me just create that little bit of a chaos here. In solid तो वो sense बनती है, लेकिन so this is your liquid and let's assume we have our gas here. Any guess? But so these are now the different mediums. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर साउंड की स्पीड में कोई फर्क होगा या नहीं होगा, so यहाँ पर अगर धक्का लगाया जाए और इसको धक्का पड़े तो ये फौरन से बहुत कम टाइम के अंदर टकराएगा अपने साथी से और ये बहुत कम टाइम में टकराएगा अपने साथी से और ये बहुत कम में अपने साथी से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वेयरएज यहाँ अगर धक्का लगे तो ये पहले यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से चलेगा, इससे टकराएगा, ये फिर यहाँ से चलेगा, इससे टकराएगा, ये यहाँ से चलेगा, इससे टकराएगा. Whereas यहाँ पर अगर धक्का पड़े तो it has to travel quite a lot before it moves and then quite a lot and then quite a lot. So लिहाजा you have guessed correctly, यहाँ पर speed of sound बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ निस्बतन कम होगी और यहाँ निस्बतन बहुत कम होगी. So just to get an idea, in dry air जैसे अभी हमने कहा it's around 343. By the way, I'll constantly refer to speed of sound as 330. One, because ये dry air वाली assumption हमेशा true नहीं होती. Two, because it's easier to do the maths around the 330 number. So that's why ये आप 330 कई जगहों पे पढ़ेंगे भी. Otherwise, like it varies between like 320 and 340s. In water, it is 1437 and all of these are like averages और उसमें assumptions हैं कि जी एक और factor भी है जो इसको impact करता है जिसका मैं अभी जिक्र करना है. But yeah, in wood you can see consistently बढ़ते हुए it's quite high, and in aluminium it's 6320 meters per second, pretty high. So as you can see, the speed of sound is impacted a lot by the medium. ठीक है. और by the way वो जो अभी आप सीख कर आए हैं ना उसे अपने जहन में रखना है. V is equal to F lambda जो अभी आप देख कर आए हैं ना रिलेशनशिप, और होपफुली आप उस पर पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि एक टाइम पीरियड के अंदर ये लैम्डा ट्रैवल करता है. सो दैट्स वाई ये फ्रीक्वेंसी के साथ, सो इट्स लाइक v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t किस तरह से बन रहा है. ठीक है, ये चीज़ आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, वो भी आपने एक पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी तफसील से देखी है. डू यू थिंक देयर इज अनदर फैक्टर दैट मे इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड?
और वो फैक्टर भी कुछ और फैक्टर से रिलेटेड होगा, लेकिन वो फैक्टर है टेम्परेचर. So you know that at higher temperatures in fluids especially and also in solids, our molecules have more energy. So in fluids अगर हम देखें तो at higher temperatures molecules ज़्यादा move कर रहे होते हैं. So the Brownian motion is faster. So ये एक ऐसा रूम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग तो भरे हुए हैं, लेकिन एक रूम है जिसमें वो कामली खड़े हुए हैं अपनी जगह, या बहुत हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं. There is another room जिसमें they're just buzzing around, लोग भाग रहे हैं तेजी से, और उस कमरे में आपने धक्का लगाया. Now the chances of a collision are much more. So there will be more collisions. And because there will be more collisions, the speed will increase. So at 0 degrees Celsius, temperature of air 331. At 100 degrees Celsius, it's around 386. So that's why ये 330 से लेकर 340 के बीच में जो ये नंबर है ना, ये हम अक्सर कोट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन कि हम किस किस्म के टेम्परेचर एज्यूम कर रहे हैं, और अगेन मैथ्स कितना आसान करना है अपने लिए. ठीक है जी. अच्छा, अब इस चीज़ को आपने बहुत अपनी ज़िंदगियों में ऑब्जर्व किया. अब मैं ज़रा थोड़ा सा आना चाहूँगा रियल लाइफ की तरफ. एंड वी आर प्रीटी क्लोज टू एक्चुअली डूइंग सम रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स. आपने जब कभी कोई लाइक थंडरस्टॉर्म आता है तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि when there is lightning, you see lightning, but you don't hear anything. And depending on कि वो बादल आपसे कितने दूर थे, like in the monsoon season, if you experience this, जो cumulonimbus clouds हैं वो बहुत नीचे आए हुए होते हैं. So उस केस में अगर आपने नोट किया और बिल्कुल आपके ऊपर तूफान आया हुआ है तो lightning, and then very quickly after that you hear the thunderclap. Whereas when it's like in a normal rain, जो बड़ी दूर से अगर कहीं बिजली चमक रही हो तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बिजली चमकी और काफ़ी देर के बाद you hear the muffled गड़गड़ाहट उसकी जो आपको आना शुरू होती है. So that you can actually measure the distance of the cloud from you using this speed 330, and then simply say कि जी जैसे ही बिजली चमकी आपने स्टॉप वॉच ऑन की, जैसे ही आवाज़ आई स्टॉप वॉच बंद की, and you can calculate the distance कि बादल का आपसे डिस्टेंस कितना है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई. और यही सेम फिनोमिना होता है जब हम फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ को देखते हैं, लाइक रॉकेट लॉन्च को यूजुअली बहुत करीब से लोगों को नहीं देखने दिया जाता, और अभी मैंने इस वीडियो में आपसे एक रॉकेट लॉन्च एक्सपीरियंस करवाना है इंशाल्लाह. तो उस रॉकेट लॉन्च के केस में लाइक द रॉकेट की सब आवाज़ नज़र आ रहा है, धुआं निकल रहा है और वो आग निकल रही है, इट्स बेसिकली इट्स रेडी फॉर द लॉन्च एंड इट गेट्स लॉन्च, और कोई आवाज़ नहीं आ रही, एंड देन सडनली यू स्टार्ट हियरिंग द साउंड. सो अगेन आप उसके अंदर भी, और आई विल शो यू अ वीडियो जिसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि आप खुद निकालिएगा कि वो कितनी दूर खड़े हुए कैमरामैन उस रॉकेट लॉन्च से. विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. एक बात और करने, थंडर क्लैप के केस में ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. बिजली चमकी, मान लिया, आवाज़ कहाँ से आई? क्या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि आवाज़ इसलिए आती है कि ये बड़ा सा क्राउड आके ये बड़े से क्लाउड से टकराया और आवाज़ आई? इफ यू स्टिल इन दैट ग्रुप, अब अच्छी बात यह है कि आप क्लास में इकट्ठे तो बैठे हुए नहीं है कि एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, तो अब अगर जो है शर्मसारी भी होगी तो अकेले में होगी, कोई बात नहीं, ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है. कोई घर वाला सुन रहा है तो और बात है, लेकिन और कोई नहीं सुन रहा, तो इसलिए लेट्स कीप इट टू आवरसेल्व्स कि आप ये समझते हैं कि बादल से टकराते हैं, इस वजह से जो है वो इतनी ऊंची ऊंची थंडर क्लाउड की आवाज़ें आती हैं, लेकिन फिर उसका बिजली से कोई रिलेशन भी तो बनाने की ज़रूरत है. अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो देन यू नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग प्रॉबेबली, एंड दैट्स एक्चुअली अ प्रीटी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. और ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसका पता होना चाहिए, ये भी आगे हमारे लिए कारआमद होगा. एंड दैट इज़ कि व्हेन अ स्पार्क अकर्स, जो आपको ये लाइटनिंग का स्पार्क नज़र आता है, इट्स वेरी वेरी हॉट. सो ये जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है, लेट्स अज्यूम इट्स अ फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस, वो फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस का जो स्पार्क है, एंड लुक इट अप फॉर द एग्जैक्ट नंबर, इट्स इन थाउजेंड्स. सो अ फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस का जो स्पार्क है वो सडनली अपने इर्द गिर्द की एयर के टेम्परेचर को चेंज करता है. और अगेन नाउ यू नो वेरी वेल कि जब एयर टेम्परेचर सडनली चेंज होगा तो उससे क्या होगा? इट्स गोना क्रिएट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सडनली उस एयर के अंदर. सो नाउ बेसिकली पॉज द वीडियो एंड आस्क योरसेल्व्स, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ एयर? कोई आपको ऐसा रिलेशनशिप पता है? बेशक वीडियो पॉज करें और उसके बाद अपने आप से ये सवाल पूछें कि whether you know of a relationship of that sort or not.
पढ़े हुए हैं आपने सारे गैस लॉज पढ़े हुए हैं। सो उन गैस लॉज के अंदर आप ये चीज़ जानते हैं कि जब सडनली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एट हायर टेम्परेचर्स आपके मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से आपस में टकराएंगे। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन दिस केस। सो उस टेम्परेचर के बढ़ने से उस गैस के अंदर देयर वुड बी अ सडन स्पाइक इन प्रेशर, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। वो हाई प्रेशर जोन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कंप्रेशनल वेव आवाज के केस में क्रिएट होती है, और वो प्रेशर जोन आपकी तरफ मूव करेगा, दैट वेव फ्रंट मूव करेगा, एंड व्हेन इट्स गोइंग टू रीच योर ईयर्स, और इसकी बात अब हम करने वाले हैं, व्हेन इट्स गोइंग टू रीच योर ईयर्स यू गोइंग टू हियर इट लाइक एन एक्सप्लोजन। ठीक है, सो जब भी ये प्रेशर फ्रंट्स आकर आपके कान से टकराते हैं यू हियर एन एक्सप्लोजन। ठीक है, द सेम गोज फॉर अ ब्लास्ट एन एक्सप्लोजन, द सेम गोज फॉर a sonic boom, और इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। some of you may not know what a sonic boom is, others may know because अब तो ये popular movies में और जगह भी बात इसकी होती है, but this is when a particular object becomes supersonic, it starts traveling above the speed of sound, speed of sound को क्रॉस करता है, तो जब वो चीज़ गुजरती है हमारे पास से तो हमें उसकी एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम sonic boom कहते हैं। so we'll see what a sonic boom is like, we're going to experience what a sonic boom is like। ये भी हमारी इसी इंट्रोडक्टरी वीडियो का हिस्सा है। बट आई होप नाउ that you have this basic relationship in your heads now कि किस तरह से हमारी साउंड ट्रेवल करती है थ्रू डिफरेंट मीडिया, और इसके क्या रिलेशनशिप्स हैं साउंड की स्पीड के साथ, और किस तरह ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, आप में से जो ज़्यादा द परसेप्टिव वंस के लिए मैं एक एक्सप्लेनेशन और दे दूं, जो पिछली स्लाइड के बाद मेरे जहन में आया कि आई शुड हैव प्रॉब्ली सेड दैट। सो इफ़ यू रिमेंबर योर गैस लॉज, या इवन यू डोंट रिमेंबर योर गैस लॉज, सो द टेम्परेचर और द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गिवन दैट द वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट। याद है? तो अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि ये बात को इतनी समझ नहीं आई कि बिजली चमकने के बाद किस तरह से ये प्रेशर वेव जनरेट हुई है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। एक स्प्लिट सेकंड के अंदर योर हाई टेम्परेचर आर्क गोज थ्रू एयर, जैसे ही वो वहां से मूव हुई सडनली एयर का टेम्परेचर उसने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में एयर एक्सपैंड हुई, बट उस एक्सपेंशन के नतीजे में अब उसको फैलने की अभी जगह नहीं मिल रही। सो वो एक्सपैंड होना चाह रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो एक्सपैंड होना चाह रही है, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी रैपिडली दूर तक मूव नहीं कर सकती। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि जो मॉलिक्यूल्स गर्म होते जा रहे हैं वो बंच टुगेदर होते जा रहे हैं, यानी बिकॉज वॉल्यूम इज काइंड ऑफ कांस्टेंट हियर, तो लिहाजा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया ना, अगर आहिस्ता आहिस्ता होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करती। सडन एक्सपेंशन हुई तो उतनी ही जगह के अंदर जब वो चीज़ एक्सपेंड हुई उसका प्रेशर बढ़ गया। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से यू गेट द बंचिंग टुगेदर एंड दैट बंच्ड अप वेव फ्रंट ट्रेवल्स। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा उसके बाद सोचा कि कहीं आपके जहन में ये ना आ रहा हो कि ये कोई बात कोई बनी नहीं, अगर बात नहीं बनी तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा जनाब, तो अगला सवाल ये है कि ये सब कुछ हमारे कान में किस तरह पहुंचता है और अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में किस तरह पहुंचता है। सो द हियरिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर जर्नी। सो अभी तक अगर आप नोट करें तो हम क्या क्या देख कर आए, साउंड होती क्या है, कुछ तरीके जिनसे ये बनती है। अभी हमने ये नहीं देखा कि हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स अ टॉपिक विच इज़ अमेजिंग एंड उसके ऊपर तो हमने वक्त लगाना है। लेकिन अभी हम खाली इस चीज़ पर आए हैं कि अच्छा साउंड ट्रेवल कैसे कर रही है एयर के अंदर, और उसके बाद फाइनली हम उसको मेजर वगैरह कैसे कर रहे हैं, और वो अब कि वो हम तक पहुंच कैसे रही है। पहले कान में, सो यू सी दिस आउटर ईयर, ये वाली जगह, यहां से ये ट्रेवल करती हुई यहां तक आई, एंड यू हैव योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। समझें ये जैसे ढोल के ऊपर वो जो खींची हुई खाल चढ़ी हुई होती है, या कोई प्लास्टिक आप किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा दें और उसको टाइट कर दें, तो ये उस तरह की एक मेम्ब्रेन है। ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा। जब ऐसी फ्रीक्वेंसीज इस तक पहुंचती हैं जिस पे ये रिस्पॉन्ड करता है, वाइब्रेट करता है, तो ये प्रेशर वेव्स बेसिकली आ रही हैं ना, धक्का लगा रही हैं इसको। सो ईच वेव फ्रंट इज बेसिकली प्रेसिंग इट, तो ये उससे वाइब्रेट कर रही है। देन देयर इज अ सीरीज ऑफ 3 बोन्स जो बीच में है, ये काफ़ी सारे काम करती हैं, लेकिन इनमें से एक काम इस साउंड की एम्पलीफिकेशन भी है। सो ये इसको एम्पलीफाई करके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू गोना लर्न, इनफैक्ट नो, सो दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इन दैट वीडियो कि ये एम्पलीफाई कैसे होती है। इफ यू लुक एट द खान अकेडमी वीडियोस में, दे हैव आल्सो एक्सप्लेन द एम्पलीफिकेशन कि ये मेम्ब्रेन बहुत बड़ा है, ये पूरा वाइब्रेट करता है, लेकिन ये जो आखिरी जो है ना हड्डी, ये 3 हड्डियां हैं, इनमें से जो ये आखिरी हड्डी है ना, ये बहुत छोटी सी है, तो सारे का सारा प्रेशर ये छोटी सी हड्डी कॉन्सेंट्रेट कर देती है। इट्स लाइक कि मैं अपने हाथ से, ये उंगली से या इस पेन से, फर्ज करें मैं अपने हाथ को प्रेस करूं, ठीक है, मैं प्रेस कर रहा हूँ इस ब्लंट एंड से, इससे प्रेस कर रहा हूँ, तो जब मैं इसे इससे प्रेस करूंगा तो जितना मर्जी मैं जोर लगा लूँ मैं शायद स्किन पंक्चर नहीं कर सकता। बट इफ आई डू द सेम विद दिस पॉइंटेड साइड, अगर यहाँ से करूंगा
तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो क्या बढ़ा है? प्रेशर तो नहीं बढ़ा, द प्रेशर पर यूनिट एरिया बढ़ गया, पर यूनिट एरिया प्रेशर इंक्रीज हो गया। सो इसकी वजह से यानी आई हैव इंक्रीज द प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू दिस स्मॉल एरिया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी एम्पलीफिकेशन हो रही है। जो प्रेशर इस पूरी बड़ी सी मेम्ब्रेन पे आया, वो इस छोटी सी हड्डी जो है वो आगे इस स्नेल शेप की चीज़ के ऊपर प्रेस कर रही है। बाय द वे छोटी सी हड्डी मुझे पहले दिखा देनी चाहिए थी, या नीचे भी बनी हुई है, तो अगर वहाँ से नज़र नहीं आ रही तो यू कैन बेसिकली लुक एट इट फ्रॉम हियर एज वेल। अच्छा, अब ये एक ढोल की तरह से स्नेल की तरह की इस ट्यूब को बजा रही है। फर्ज करें ये गुब्बारा लें, वो लंबे गुब्बारे नहीं होते, उसमें पानी भरें और उसको कॉइल अप कर दें। ये इस तरह की चीज़ है और इसका स्ट्रक्चर आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस चीज़ को हम कॉक्लिया कहते हैं और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और इसने प्रेशर को ट्रांसफर कर दिया है उस फ्लूइड के अंदर। तो अब ये प्रेशर वेव उस फ्लूइड में ट्रेवल कर रही है और इस पूरे के पूरे कॉक्लिया में इस ट्यूब के अंदर बाल हैं, सिलिया जिसको हम कहते हैं, बालों के गुच्छे हैं और वो बालों के गुच्छे के बेस पर हमारे नर्व्स लगे हुए हैं। सो व्हेन दोज हेयर्स बेसिकली वाइब्रेट, वो हेयर, अब मज़े की बात जो सबसे ज़्यादा है जो आप अगले वीडियो में देखेंगे, दोज हेयर्स along this tube vibrate at different frequencies. So जो हेयर करीब हैं इस जगह के जहाँ पर ये हड्डी इसको स्टार्ट कर रही है, वो हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाइब्रेट करते हैं और जैसे जैसे हम इस कॉक्लिया में आगे मूव करते चले जाएंगे, हेयर का रिस्पॉन्स लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होता चला जाएगा। सो बेसिकली दिस इज नाउ कन्वर्टिंग योर टाइम डोमेन सिग्नल इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम यहाँ पे बन चुका है और इन तमाम जगहों से तारें निकली हुई हैं जो उन बालों के बेस से जा रही हैं और वो आपके दिमाग में इस सिग्नल को लेकर जा रही हैं। सो यू आर गेटिंग बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट ऑफ दिस साउंड which is going into your head. ठीक है, so I'll stop here and I'll let the video speak for itself with better visualizations. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest-pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. All right, Janab. So now we have already seen how the sound travels all the way from where it is generated into our brain, and we have learned a little bit about the perception of sound through our ears. अब आई थिंक कि हम रेडी होते जा रहे हैं काफ़ी नए और इंटरेस्टिंग मामलात को थोड़ा सा देखने के लिए. So here is an interesting point for you. So let's assume this is you, this is your head, and these are your ears. Now at this point, and let me just
make a little bit more of this so that ye head lage na ke headphones. All right, so we have 2 ears, and we hear everything around us through both of these ears, just like we see through our 2 eyes. और जो हमें विजन बना हुआ नज़र आता है, we can see through one eye, लेकिन उसमें depth नहीं होती. So the depth perception is enabled when we see through both of our eyes. So the stereoscopic image that we get through the 2 eyes gives the image its depth. In the same way, the stereo sound that comes to our heads through our 2 ears give us depth in the environment and give us allows us to locate and to situate ourselves in our environment. For example, there are multiple things which allow us to, even if we close our eyes and some event happens here or here or here, we're able to know quite precisely where that event has taken place, or at least a direction from where the sound is coming from. And there are basically 3 things that enable us to perceive this. The first one is the arrival time of sound in both of the ears. So we have our outer part of the ear, which makes the ears directional, so it's more likely to receive sound from this direction, but the sound from other directions would be muffled a little bit because it will be stopped initially by this part of the ear. And similarly, because the back side of the pinna, it is projecting a little bit out, and the front side is a little bit it has a curve to it. So therefore, sounds from various directions have a slightly different quality. So that's the first thing. Okay, I'll talk about the time later, but it has a little bit of different quality. So the sound sounds differently, and when we'll get into analyzing spectrums, we'll see that the sound is actually very different when it arrives directly from here or here versus when it comes from the backside. The second thing is, for example, the sound source is here. So the sound from this source, which will be moving in these circles, will first approach this ear, and then sometime later it will approach the other ear here. So this delay between the arrival of sound on one ear versus the other ear allows us to locate that sound in our environment. That's the first cue, the time, the difference. So the time of arrival allows us to estimate the direction of arrival of sound. The second is loudness. So the sound which arrives from this source, which arrives on this ear, is slightly louder compared to when it arrives here. And the third one is the quality. So which I discussed in the beginning. So the quality, one, it is being reflected through the reflected when it reaches the various parts of the ear, but also when it reaches other obstacles. So maybe there's a wall here and there's a wall here, so the sound goes from here, here, touches here, comes back. Maybe there is some other object here, some other object here. So these objects and the reflection of sound and the refraction of sound through other mediums, so all of that combined together, and we will discuss that in quite a lot of detail कि sound की resonance क्या होती है और किस तरह से sound जो है वो अपने आप को interfere करती है खुद अपने साथ भी, and that interference could be constructive or destructive. But in the end, the quality of sound that arrives on both ears could be different. Now, what that all means is that if we want to create a truly immersive experience for a listener, for example, using headphones, we would need to somehow create that differential arrival, that differential volume, and the differential quality of sound. और सिर्फ तभी सुनने वाले को ऐसा लगेगा जैसे ये वाकई वहाँ मौजूद है जहाँ पर let's say रिकॉर्डिंग हो रही है. इस चीज़ के लिए बहुत से तरीके यूज़ किए जाते हैं. Most of them are artificial, जिसके अंदर different surround की strategies हैं जिससे आपको कोई 3D virtualization देने की कोशिश की जाती है, like some sound going back and forth and on your sides and so on. One of the really amazing strategies and a very simple one is binaural audio. So binaural audio, when recorded through, so binaural simply means कि ये दोनों कानों में अलग-अलग आपके पास आवाज़ जा रही है. Binaural का सिर्फ इतना मतलब है. But when I say binaural recording equipment, that's a specific technique for recording audio so that it sounds very natural and real to you.
Okay, the way it works is that you take, for example, a head, एक आपने स्टायरोफोम का बना हुआ या किसी भी ऐसी कंसिस्टेंसी की चीज़ का बना हुआ एक सर लिया, इंसानी सर की तरह का, जो जिसके अंदर का जो मटेरियल है वो रफली उसी तरह का है जिस तरह का हमारी बॉडी होती है, या एक हार्ड सब्सटेंस है जो, लेकिन इस तरह का कि वो साउंड को बहुत ज़्यादा ना तो प्रोपिगेट करने में हेल्प करे और ना उसकी जितना हमारा सर करता है और ना उसकी निस्बत जो है वो कोई कम करे. So it's like something like the human head. And then on both sides you place, for example, silicone ears या rubber ears. So इसी तरह का पेना बना हुआ, और उसके अंदर दोनों साइड पे दो माइक्रोफोन्स लगे हुए. So you place a microphone here and you place a microphone here, and you have these two wires. And now when you're doing the recording, you record this on a stereo stream. हम ये stereo को काफ़ी तफसील से पढ़ेंगे जब हम वेव फाइल की एनकोडिंग देख रहे होंगे. But what it simply means is कि एक माइक्रोफोन की जो रिकॉर्डिंग है वो एक चैनल पर होगी और दूसरे की दूसरे चैनल पर होगी. एंड व्हेन यू आर हियरिंग दैट ऑडियो थ्रू अ हेडफोन, आपके दोनों कानों के अंदर एक में इस माइक की रिकॉर्डिंग और एक में इस माइक की रिकॉर्डिंग जाएगी. नाउ बिकॉज इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड with a setup which is very similar to our own hearing system, you get a very realistic perception of depth and immersion, and you can situate yourself in those environments. इसको हम binaural recording equipment कहते हैं, and popularly this is known as binaural audio. मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक disclaimer दे दूँ और warn कर दूँ. जब आप Google पे जाकर या YouTube पे सर्च करेंगे binaural audio, तो जो सबसे पहली चीज़ें निकलना शुरू होंगी, there will be something like using binaural beats to induce sleep, या to induce creativity, imagination, to induce blah and this and that. मैं recommend करूँगा कि आप उन चक्रों में ना पड़ें. That's pseudoscience. We don't have very sound basis for that. It dwells on science for a bit, that our brain has different sorts of brain waves, and उन brain waves के frequencies को जब मिलती जुलती कोई frequency हमारे दिमाग में play की जाती है, and we'll actually talk about that. हम देखेंगे कि sounds के आपस में interact करने से नई frequencies बन सकती हैं जिनको हम beats कहते हैं. So we'll deal with beats in a lot of detail. That's actually one of the lectures. लेकिन बाइनॉरल ये जो इस किस्म की वीडियोस हैं वो ये क्लेम करेंगी कि उन बीट्स के थ्रू वो आपके दिमाग को एक ख़ास स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं. अब आई डोंट नो वेदर दे आर एबल टू डू दैट और नॉट. आई डोंट वांट अ रैंडम यूट्यूबर टू बी एबल टू एक्सप्लोर थिंग्स इन माय हेड व्हिच इज़ नॉट इवन प्रॉपर साइंस. सो इफ दैट वर्क्स समहाउ आई वुडंट वांट देम टू ट्वीक विद माय हेड. सो किसी ट्रेन्ड साइकोथेरेपिस्ट को भी अपना दिमाग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में देना मुश्किल होता है, तो आप किसी रैंडम यूट्यूबर को क्यों नहीं देना चाहेंगे. सो फॉर दिस काइंड ऑफ ऑडियो वॉच, अगर आपने ऐसी वीडियोस देखनी है जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सुनवाने वाला हूँ, सो यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर बाइनॉरल ऑडियो, फॉर एग्जांपल 3D बाइनॉरल ऑडियो, 3D बाइनॉरल वर्चुअल ब्ला, इस किस्म की जब आप चीज़ें ढूंढेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा. एंड देन देयर आर रियली गुड चैनल्स लाइक स्मार्टर एवरीडे is one of those channels जिसकी मैं आगे जाके आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा. So that's actually a pretty good and very well maintained channel जिसके अंदर उन्होंने binaural audio record की हुई है in various places like in cities, in snow, in different kinds of situations. All right, so with that disclaimer कि binaural से सारी चीज़ें जो निकलेंगी वो चीज़ नहीं होंगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और with that disclaimer कि हर चीज़ पे अपने कानों और दिमाग को expose ना करें. Let's try and experience what binaural audio sounds like. इसके लिए now you need to put on your headphones, 1, and 2, make sure कि आपके हेडफोन के जो ईयर्स हैं वो सही लगे हुए हैं. सो राइट में राइट और लेफ्ट में लेफ्ट लगा हुआ है. इसको उल्टाइएगा नहीं वरना वो बात नहीं बनेगी. सो व्हेन यू रेडी, बेशक पॉज कर लें जब तक आप रेडी होते हैं, बिकॉज उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा. एंड देन लेट्स एक्सपीरियंस binaural immersive audio, maybe for the first time for some of you. Listen to this. This is binaural audio. Right now, if you're wearing headphones, it should sound like you're in New York City.
All right, Ji. So now we are ready to understand one of the last concepts to be covered in this lecture, and this is actually a very important concept. और इसको इसलिए भी हमें ज़रूरत है कि we need to explain what sonic booms are, and they are very closely related with this concept of Doppler's shift. So Doppler's shift is the apparent change in the frequency of sound, और ये खाली sound तक महदूद नहीं है. The same applies to light, but in this case we're talking about sound. When there is an apparent when there is a relative change in distance between the observer and the source of the sound. So फर्ज कीजिए जिस चीज़ से आवाज़ निकल रही है वो आपकी तरफ मूव कर रही है या आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, या वो आपसे दूर मूव कर रही है या आप उससे दूर मूव कर रहे हैं. इन दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही होगी वो उससे डिफरेंट होगी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उस साउंड की. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सिंपल कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, सो हियर इज द सोर्स ऑफ साउंड, और इससे अब आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो ये रिंग्स हैं ये क्या चीज़ है. सो दीज आर लाइक अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस. और इस मौके के ऊपर अगर मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, लेट्स से वो ऑब्जर्वर प्लेस्ड है यहाँ पर कहीं. सो आई हैव एन ऑब्जर्वर O हियर. तो अब इसके पास से पर यूनिट टाइम, लेट्स से पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स गुजर रहे हैं, दैट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड, एंड दैट्स द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड. एट दिस पॉइंट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर and the source of sound. दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हैं, ठीक है. But what will happen if this observer starts moving towards the source of sound, or the source of sound starts moving towards the observer? तो क्या होगा? And let's see. इस किस्म की कोई चीज़ होगी. So let's say कि हमारा ये observer है now. अब क्योंकि वेव फ्रंट जनरेट करने के फौरन बाद उसके साथ साथ ही ऑब्जर्वर मूव, जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव भी कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ. देयरफॉर यू कैन सी दैट द वेव फ्रंट्स आर क्लोजली स्पेस्ड ऑन दिस साइड ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, जिस तरफ वो मूव कर रहा है, कंपेयर्ड टू ऑन दिस साइड. और दूसरी चीज़ जो आप ऑब्जर्व करें कि दोनों साइड्स में कहीं पर भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है. इस साइड पर ज्यादा है ओरिजिनल से, इस साइड पर कम है ओरिजिनल से. सो आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आपको. So it's a fairly simple to understand concept. This is known as the Doppler's shift. This is the change in frequency due to the relative motion between the observer and the source of sound. So इस side पर जहाँ observer खड़ा हुआ है, जैसे जैसे ये source इसकी तरफ move करता हुआ आएगा, इसको एक high pitch sound सुनाई दे रही होगी compared to the original sound जो कि उसमें से निकलनी थी. लेकिन अगर ये चलता चलता इसको pass कर जाए और आगे चला जाए, तो तब observer इसकी wake में होगा, यानी इससे पीछे होगा, इस zone में होगा. जब इस जोन में होगा, इनफैक्ट लेट मी जस्ट रब इट एंड मेक द ऑब्जर्वर एट अ प्लेस जहां पर आपको ये दोनों चीजें नजर आ सकें. लेट्स से मैं ऑब्जर्वर को यहां प्लेस कर देता हूं. सो अब इस पॉइंट से आगे जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है, लेट मी एक्चुअली प्लेस इट इवन फर्दर. सो लेट मी प्लेस इट हियर. सो जब ये इसको क्रॉस कर गया तो अब इसको एक लो पिच सुनाई दे रही है इसके गुजरने के बाद. सो इसके अपने तक पहुंचते हुए हायर पिच और गुजरने के बाद लोअर पिच. तो वो जो आपने नैस्कार वगैरह के अंदर चीजें देखी हैं, गाड़ी आपकी तरफ आ रही है एंड यू हियर अ हाई पिच साउंड एंड देन इट पैसेस एंड देन यू हियर अ लोअर पिच साउंड. सो वो जो टिपिकल साउंड पैटर्न आपको सुनाई देता है ना, वो इस डॉपलर शिफ्ट की वजह से होता है. सिमिलरली एक सायरन बजाती हुई या हॉर्न बजाती हुई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है एंड यू हियर अ डिफरेंट साउंड व्हेन इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू एंड अ डिफरेंट साउंड व्हेन इट गोज अवे फ्रॉम यू. It sounds somewhat like this. So that's the Doppler's shift. और फाइनली अब सोनिक बूम को समझने के लिए इसी डॉपलर शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को इसकी एक जो लॉजिकल लिमिट बनती है वहां पर ले जाएं कि जो आपका सोर्स ऑफ साउंड है मूव जो कर रहा है, व्हाट इफ इसकी स्पीड ऑफ साउंड को अप्रोच करना शुरू कर दे. व्हाट इफ इसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाए. पहले अपने जहन में विजुलाइज करें क्या होगा जब इसकी स्पीड ऑफ साउंड की तरह की होने लगेगी. तो क्या होगा? एंड once you have visualized it, let me move on with that. Something like this will happen. कि इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये खुद उसके साथ साथ चल रहा है. एट दिस पॉइंट बेसिकली आप मार्क 1 पे पहुंचे हुए हैं. इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ये मार्क 1 पे पहुंचा हुआ है, मीनिंग ये स्पीड ऑफ साउंड पे पहुंचा हुआ है. इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड. अब ये एग्जैक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि हमने कहा स्पीड ऑफ साउंड कोई इस तरह का कोई फिक्स नंबर तो है नहीं. ये टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है. बट एनी हाउ जब अगर हम उसको वहां तक एग्जैक्ट पहुंचा दें तो ये चीज़ होगी. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिए.
और वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस वेव फ्रंट का कि ये अपने आगे जो बंच टुगेदर हुए हुए ये सारे, अब याद करें ये हर कंप्रेशन जो है, हर लाइन जो है, ये एक सिंगल कंप्रेशन है और यहाँ पे ये सारी कंप्रेशंस जुड़ के एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन बन गई है. दैट स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन इफ इट हिट्स द ईयर ड्रम, ये आपको एक एक्सप्लोजन की तरह सुनाई देगी. और ये एक्सप्लोजन कौन सुन रहा होगा? लेट्स से एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है एंड बूम, दिस इज द पॉइंट वेयर दे गोना हियर इट. एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, उसे कुछ नहीं सुनाई दिया एंड सडनली एन एक्सप्लोजन हिट्स देम. ठीक है. What if this source of sound is moves faster than the speed of sound? Something like this will happen. ये खुद जिस साउंड को जनरेट कर रहा है उसके वेव फ्रंट से आगे निकलता चला जा रहा है. वेव फ्रंट्स पीछे रह गए हैं, ये उससे आगे निकलता चला जा रहा है. इन दोनों केसेस में, ऊपर वाले दोनों केसेस के अंदर there is a very strong wave front. And in this case, in the lower case, this is actually like a cone. So it's this here and it's this here. ये दो जो कोन के सेक्शंस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन फ्रंट बन चुके हैं और जब ये किसी ऑब्जर्वर को टकराएंगे, लेट्स से दिस ऑब्जर्वर, जब ये इस ऑब्जर्वर को टकराएंगे यानी जब ये इस लाइन को टच करेगा तो एट दिस पॉइंट दिस ऑब्जर्वर इज गोइंग टू हियर एन एक्सप्लोजन. अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल सुनाने लगा हूँ. एक काम ज़रूर करें, अगर आपने बहुत ऊंची आवाज़ की हुई है और हेडफोन लगाए हुए हैं तो आवाज़ थोड़ी सी नीची कर दें या वक्ती तौर पर हेडफोन थोड़े से दूर कर दें. आई डोंट वांट कि आपने ईयरबड बिल्कुल कान के अंदर घुसा के लगाई हुई हो, वॉल्यूम फुल किया हुआ हो मेरी बात सुनने के लिए और सडनली यू हियर दैट एक्सप्लोजन. आई डोंट वांट कि पहली ही क्लास के आखिर में आपके जो है वो खुदा न खास्ता कानों के पर्दे बाहर लटक रहे हों. तो जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू सेफ. तो वॉल्यूम नॉर्मल कर दें या अभी थोड़ी देर के लिए हेडफोन उतार दें. वैसे मज़ा आपको इस आवाज़ का तभी आएगा अगर हेडफोन लगे हो, तो एक दफ़ा सुन के कि कितनी ऊंची है फिर हेडफोन लगा लीजिएगा. पहली बात. दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताने लगा था सोनिक बूम के बारे में, वो अचानक मेरे जहन से निकल गई है. व्हाट वाज आई अबाउट टू टेल यू? यस, वो मैं आपको ये बताने लगा था कि आप जितनी भी एग्जांपल्स देखेंगे ना फाइटर जेट्स की जिसके ऊपर सोनिक बूम की वीडियोस बनी हुई होती हैं, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी. वो नज़र ये आएगी कि ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ना यहाँ पर आपको एक हेलो सा नज़र आएगा. इट्स लाइक अ कोन नज़र आ रही होगी और वो कोन को समटाइम्स समझा जाता है कि ये इट्स यानी ये सोनिक बूम समहाउ उसकी इंडिकेटिव है. इट्स नॉट नेसेसरी. वो जो कोन बन रही होती है दैट्स कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन. और वाटर कंडेंसेशन अगर आपको मालूम हो, अगर हम वाटर वेपर को कोल्ड एनवायरनमेंट में ले जाएं तो वो कंडेंस होकर वाटर बन जाता है. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद है ना आपको, जिस तरह से एक ठंडी बोतल के ऊपर पानी जम जाता है, एयर में जो वेपर्स हैं वो उसके ऊपर आकर कंडेंस हो जाते हैं, या जिस तरह आपके एयर कंडीशनर में से पानी गिर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से. तो जब जहाज के व्हेन अ फाइटर जेट इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड तो उसके फ्रंट पे बहुत हाई प्रेशर जोन है लेकिन उसकी बैक पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है. वो जो लो प्रेशर जोन है वहां पर वाटर कंडेंस होकर, वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर बन रहा होता है. सो यू आर सीइंग दैट क्लाउड इन दोज वीडियोस, और ये आपको इन वीडियोस में भी नजर आएगा. सो आई होप आप अब तक अपना हेडफोन वगैरह एडजस्ट कर चुके हैं एंड यू आर रेडी. सो लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट जनाब, सो आपसे वादा किया था मैंने कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके हम ये प्रूव करेंगे कि जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज की, वो हमें किस तरह से परसीव होती हैं, हम उनको किस तरह सुन रहे होते हैं. उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना ज़रूरी है. हम स्पेक्ट्रम को इससे पहले देख चुके हैं, राइट. हम ये देख चुके हैं कि अगर मेरे पास ये एक टाइम डोमेन प्लॉट है, सो देयर इज टाइम हियर, और इसकी मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन इंटरप्रिटेशन करता हूँ, सो मुझे ये सिंगल लाइन मिलती है. अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज थी तो जितनी भी इसमें फ्रीक्वेंसीज मौजूद होंगी उन सब की मुझे यहाँ पर लाइंस नज़र आ रही होंगी, वेयर ईच लाइन की जो हाइट है वो इंडिकेटिव है कि वो वाली फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ अवेलेबल थी इस वेव फॉर्म के अंदर. ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड हमने कहा था कि हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज़ कि यूजुअली जो हमारी ऑडियो है, जो हमारी साउंड है, वो टाइम वेरिएंट होती है, वक्त के साथ साथ बदल रही होती है. सो मीनिंग कि अगर मैं लेट्स से एक टाइम इंस्टेंट से दूसरे टाइम इंस्टेंट तक देखूंगा तो मुझे एक तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा. उसके बाद हो सकता है फ्रीक्वेंसीज चेंज हो गई, एक नई आवाज़ आना शुरू हो गई, किसी ने म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया, किसी ने बोलना शुरू कर दिया और जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो गई. तो यहाँ से आगे अगर मैं इस पूरे का अगर मैं स्पेक्ट्रम लूँगा तो वो एक अजीब सा मिक्सचर होगा कि वो इस जगह तो कुछ और फ्रीक्वेंसीज थी, इस जगह कुछ और थी. तो इसके लिए हम करते ये हैं कि हम बेसिकली विंडोइंग कर लेते हैं. सो मेरे पास ये एक सिग्नल है एंड दिस इज व्हाट द एक्चुअल सिग्नल्स विल लुक लाइक.
और हम करते ये हैं कि हम कहते हैं जी यहाँ से यहाँ तक का स्पेक्ट्रम निकाल लो, उसके बाद जी यहाँ से यहाँ तक का स्पेक्ट्रम निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो। और ये मैंने नॉन ओवरलैपिंग बनाए हैं, यानी अलग अलग। और इनका इसका स्पेक्ट्रम निकाला तो ये कोई एक स्पेक्ट्रम आ गया, इसमें कुछ ये फ्रीक्वेंसीज थी। इसका स्पेक्ट्रम निकाला तो ये कुछ और आ गया, इसमें कुछ और फ्रीक्वेंसीज थी, एंड सो ऑन। तो इसमें हर पॉइंट का मैं एक अलग अलग स्पेक्ट्रम निकाल लेता हूँ और मैं अलग अलग ऑब्जर्व कर सकता हूँ इनको। बाय द वे मैं ओवरलैपिंग भी कर सकता हूँ कि लेट्स से पहला स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ तक के विंडो का, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, तीसरा यहाँ से यहाँ तक का, एंड सो ऑन। ये भी हो सकता है, ये हम आगे जाकर बहुत तफसील से पढ़ेंगे। However, it's very difficult to visualize all of these spectrums for this time plot. ये अलग अलग स्पेक्ट्रम देखना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए फिर हम तरीका यूज करते हैं। वो तरीका हम ये करते हैं कि वी मेक अ टाइम प्लॉट। सो वी हैव टाइम t, सो वी हैव अ सिग्नल। फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास ये एक सिग्नल है, ये नॉर्मल मेरा जिस तरह से वेव फॉर्म्स प्लॉट होती हैं, यू कैन सी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक सिग्नल है। अब इस सिग्नल का मैंने स्पेक्ट्रम निकाला लेट्स से यहाँ तक का, और मैंने किया ये इस एक्सेस पे तो टाइम रहा, लेकिन इस एक्सेस के ऊपर मैं ले गया फ्रीक्वेंसीज को। सो लेट्स से मेरी ये 0 हर्ट्ज है एंड दिस इज फॉर एग्जांपल 5000 हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो वो स्पेक्ट्रम में, अगर हम ये बिल्कुल स्पेक्ट्रम ही बना रहे होते तो वो यहाँ पर इस तरह का प्लॉट बनता, जो जो फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं उनकी मेरे पास ये लाइंस आ जाती। लेकिन मैं अब ये यूं नहीं करना चाहता, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक डिफरेंट अंदाज में। मैं ये कहता हूँ कि जो जो फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी वो फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पर लेट्स से मैं उस पर डॉट लगा देता हूँ, और जो मौजूद नहीं हो मैं खाली छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये इंडिकेट करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रेंथ से मौजूद है। तो जहां वो ज्यादा स्ट्रेंथ से मौजूद है वहां मैं डार्क डॉट लगाता हूं, और जहां पे वो कम स्ट्रेंथ से मौजूद है वहां मैं लाइटर डॉट लगा देता हूं। सो नाउ आई हैव अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ 3D प्लॉट। और वो 3D किस तरह से है, इस एक्सेस पे टाइम चल रहा है, इस एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी चल रही है, और यहां पर मेरे स्पेक्ट्रम्स पड़े हुए। सो बेसिकली दीज आर ऑल माई स्पेक्ट्रम्स, ये स्पेक्ट्रम्स पड़े हुए पूरे जो है ना, ये एंड तक पूरे ये स्पेक्ट्रम्स पड़े हुए। और हर स्पेक्ट्रम के अंदर इसेंशियली मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो जो फ्रीक्वेंसी मौजूद है वो यहाँ पे कलर्ड होगी, और जो ज़्यादा इंटेंसिटी से मौजूद है वो डार्कर कलर होगा, जो कम इंटेंसिटी से मौजूद है वो लाइटर शेड्स होंगे, एंड सो ऑन। और जो नहीं मौजूद वो बिल्कुल वाइट होगा। ये मैंने ग्रे स्केल में बनाया है, वरना हम यहाँ पर इसको लेट्स से कोई रेड से ब्लू तक का भी मैप दे सकते हैं, हीट मैप्स जिनको कहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। दिस होल थिंग इज नोन एज अ स्पेक्ट्रोग्राम। सो इट्स अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम्स ओवर टाइम, और ये स्पेक्ट्रम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन विंडोज को जो हमने यहाँ पर की हुई हैं टाइम सिग्नल के अंदर, ठीक है। इनको स्पेक्ट्रोग्राम्स कहते हैं। तो अब हम करने ये लगे हैं, अब हम दो काम करने लगे हैं। पहली चीज मैं आपको एक रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक स्पेक्ट्रोग्राम दिखाऊंगा। सो फॉर दैट यू नीड टू गो एंड सर्च फॉर दिस थिंग RTgram, या डायरेक्टली इस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ से जाकर इसको इंस्टॉल करें। ये एक रियल टाइम स्पेक्ट्रोग्राम है जो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर चलाकर छोड़ देंगे। ये हमारे माइक से जो इनपुट ले रहा है उसको सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करके हमें शो करना शुरू कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने स्मार्टफोन के ऊपर कोई टोन जनरेटर इंस्टॉल कर लें। लाइक एंड्रॉइड पे मेरे पास एक टोन जेन के नाम से है, एक फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर के नाम से, कुछ भी आपको मिल जाए, कोई ऐसी चीज जो 0 से लेकर सॉरी 20,000 हर्ट्ज तक की साइन वेव जनरेट कर सकती हो। तो जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट, आपको मिल जाएंगे कुछ। और when you're ready, when you have installed both of these things, then इस वीडियो को अनपॉज कीजिएगा और यहाँ से आगे बढ़िएगा। So I'll do this experiment live with you. I'll move to my screen now and we'll see, और थोड़ा सा हम जो अब तक कॉन्सेप्ट्स देखते आए हैं उनको वहाँ पर और सॉलिडिफाई भी करते हैं। ऑलराइट जी, सो इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और इसके ऊपर मैंने ये RTgram खोला हुआ है। सबसे पहले लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव हियर। सो सबसे नीचे आपको ये इस कोने में फ्रीक्वेंसीज नज़र आ रही हैं। जिस जगह मैं अपना माउस कर्सर लेकर जा रहा हूँ ये मुझे दिखा रहा है कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या है। सो फॉर एग्जांपल इट इज़ 43, 7 एंड इट्स लाइक 0 हियर नीचे बिल्कुल। और अगर हम यहाँ से ऊपर चलते जाएंगे तो एट मैक्स इट्स गोइंग टू अराउंड 5000 हर्ट्ज, ठीक है। ये 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ बिल्कुल ऊपर है। सो इट्स लाइक 0 to 5000 हर्ट्ज जो यहाँ प्लॉट हुई हुई है। डेसिबल के अंदर इंटेंसिटी आ रही है, यू नीड टू केयर अबाउट दैट एट दिस पॉइंट। बाकी चीज़ों को आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर से मैं इसकी कन्फिग्रेशन चेंज करके और इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी रेंज भी चेंज कर सकता हूँ, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेट मी फर्स्ट जस्ट रन इट एंड सी व्हाट हैपन्स। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरी आवाज़ के प्लॉट शो करने लगेगा, जो आगे जाकर हमारा मेन मौजू है। और लेट्स एक्चुअली डू दैट। सो इट्स शोइंग, इट्स प्लॉटिंग माई वॉइस एज आई एम स्पीकिंग। और अगर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ और बिला मुबालगा बताऊँ
कि इस सेमेस्टर के तकरीबन कोई दरमियान में जाकर आप इन प्लॉट्स को देखकर, इसको स्पेक्ट्रोग्राम प्लॉट्स को देखकर आप ये बता सकेंगे विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है. सो मैट्रिक्स के अंदर तो पता नहीं कितना आसान था वो ज़ीरोज़ और वंस को देख कर के बताना कि क्या हो रहा है, बट इन दिस यू कैन एक्चुअली टेल कि क्या चीज़ बोली जा रही है और क्या चीज़ कही गई है बाय लुकिंग एट दीज प्लॉट्स. सो अगर मैं इस प्लॉट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, एंड लेट मी जस्ट पॉज इट एट अ पॉइंट. तो इस मौके के ऊपर ये मुझे शो सिर्फ ये कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम डोमेन प्लॉट ऑफ द वेव, जो मैंने जो कुछ भी बोला था. और ये उसका, ये हर लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, इंडिविजुअल लाइंस, दीज आर द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम्स. तो इस स्पेक्ट्रम को अगर मैं खाली देखूं तो ये मुझे ये कह रहा है, और मैं यहाँ नीचे साथ साथ देख रहा हूँ, ये मुझे ये कह रहा है कि ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो डार्क हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से मौजूद थी, ये फ्रीक्वेंसीज़ को इतनी ख़ास मौजूद नहीं थी, फिर ये मौजूद थी, फिर ये मौजूद थी, बीच में ये वाइट वाली मौजूद, मैं इस जगह को अगर देखूँ ये वाइट मौजूद नहीं थी, ये मौजूद थी, ये मौजूद नहीं थी, ये मौजूद थी, एंड सो ऑन. सो मैं अगर इस स्लाइस को अलग से प्लॉट करके देखूं तो ये मुझे सिंपल एक स्पेक्ट्रम नज़र आएगा. तो ये एक सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रम्स हैं जो मैंने स्टैक किए हुए हैं अलॉन्ग द टाइम एक्सिस. ठीक है. सो अब इसका मतलब ये है कि मैं अगर एक प्योर टोन चलाता हूँ, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं एक प्योर टोन चलाऊं तो मुझे अपने स्पेक्ट्रोग्राम पे क्या नज़र आएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टर्निंग ऑन द टोन जनरेटर. और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बेहतर है कि अगर हेडफोन पे हैं तो हेडफोन हटा दें और आप सिंपल उस पर आ जाएं. आपके कानों को उम्मीद है इंशाल्लाह नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल आई डोंट वांट यू टू फील अनकंफर्टेबल विद द साउंड्स जो कि मैं प्ले करने लगा हूँ. सो आई विल बी प्लेइंग अ प्योर टोन. लेट मी जस्ट रन दिस. I'll play a pure tone and then we'll see कि क्या चीज़ प्लॉट होती है. सो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं 1000 हर्ट्ज़ को प्ले करता हूँ, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि मुझे स्पेक्ट्रोग्राम प्लॉट पे क्या नज़र आएगा. ठीक है. अपने जहन में कॉन्सेप्ट बना लें एंड देन लेट मी जस्ट रन इट. ऑल राइट, स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इसको स्ट्रेट लाइन होना चाहिए क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि इतनी चौड़ी क्यों है. एंड दैट यू डोंट नीड टू वरी एट दिस पॉइंट. इस फ्रीक्वेंसी बार के इतने चौड़े होने को इग्नोर कर दें. ऑल यू नीड टू वरी अबाउट इज़ कि ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर, और ये फ्रीक्वेंसी भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 1000 हर्ट्ज़ के ऊपर इसका मीन आ रहा है, इसका सेंटर तकरीबन 1000 हर्ट्ज़ पे आ रहा है. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा फाइन स्केल है, इस वजह से नीचे आपको ये 994 और 1000 में जो माउस एग्जैक्टली प्रेस करना मुश्किल है, बट दिस ये जो रेड डॉट्स लगे हुए हैं 1000 पे लगे हुए हैं. लेट मी जस्ट स्टॉप दिस. सो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये प्लॉट हमें शो क्या करता है. अच्छा, नाउ what I'm going to do is I'll just go to this configuration and I'll change the range to 20,000 hertz. So now this is going from 0 to 20,000 hertz. ये बिल्कुल ऊपर जो है ये अब 20,000 hertz का जोन है. ठीक है. तो अब ये पूरे 0 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की सारी फ्रीक्वेंसीज नज़र आ रही हैं. एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम जो है वही नीचे के हिस्से में हो रहा है, और ये बात भी आगे जाकर आएगी, ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और जब हम स्पीच को पढ़ेंगे अगले ही लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, तो फिर हम इन पैटर्न्स को अभी से पढ़ना भी सीखना भी शुरू कर देंगे. बाय द वे लेट मी जस्ट से अ फ्यू थिंग्स जिससे आपको थोड़ा ये अंदाज़ा हो कि पैटर्न्स रिपीट होते नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे. सो लेट मी जस्ट से एंड रिकॉर्ड दीज साउंड्स. Ba 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 b 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 pa 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 pa. And now if I say two sounds which are similar to each other, ba and pa, you will be able to see some difference between them. All right, let me do that. Ba 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 pa 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 ba 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 pa 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 pa. You see कि कुछ difference आ रहा है. I'll actually say both of them and I'll stop it. Ba 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 pa pa pa. All right. So you can see कि बहुत मिलते जुलते हैं ये आपस में. This is a ba, this is a ba and a, and this is a pa and a. बट इंटरेस्टिंगली ये नीचे का हिस्सा दोनों में डिफरेंट है. तो खैर जब हम स्पीच में जाएंगे तो इस तरह की बातें देखेंगे, लेकिन अभी से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन वी स्पीक आउट द पैटर्न्स विच आर फॉर्म्ड हियर आर रिकग्नाइजेबल. अगर हम खाली अभी कुछ भी नहीं सीख सके हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न्स. ऑल राइट. सो नाउ वी आर रेडी फॉर आवर एक्सपेरिमेंट. सो द एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी सिंपल. मैं करूँगा सिंपली ये कि मैं इसको बहुत लो फ्रीक्वेंसी से इस टोन जनरेटर को स्टार्ट करूँगा, और ये एक्सपेरिमेंट ना बेहतर ये है कि आप अपने टोन जन पर अपने घर में ख़ुद करें,
क्योंकि अभी जो कुछ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे मोबाइल पे ये चल रहा है, इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रहा है और इस माइक्रोफोन से फिर ये इस वीडियो के अंदर इनकोड हो रहा है, बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं। तो हो सकता है ये आप तक परफेक्टली ना पहुँच रहा हो, तो बेहतर है कि आप अपने फ़ोन पर ये टोन जनरेटर चलाएँ और उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करें। हमने देखना सिर्फ ये है, दो बातें सिर्फ। एक, जो भी फ्रीक्वेंसी चल रही होगी मुझे आर्टिग्राम पे नज़र आ रही होगी, दैट मीन्स कि वो आवाज़ है। दूसरी चीज़ कि एक लेवल पर पहुंचने के बाद हमें आवाज़ आना बंद हो जाएगी, एंड दैट्स द पॉइंट जिसमें हम ये जान जाएंगे कि अब ये हमारा कान इस पॉइंट पे सेंसिटिव नहीं रहा। और आप हैरान होंगे कि हम में से अक्सर के लिए वो पॉइंट 20,000 हर्ट्ज से बहुत नीचे होगा। दूसरी चीज़ जो हम इस रास्ते में ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज़ मैं आपको खैर पहले से बता दूं, जब ये फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही होंगी आपके अंदर ना एक अचानक एक फियर का इमोशन इन्वोक होगा, जैसे कुछ होने वाला है। ये एक नेचुरल एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है। मुझसे स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में पूछते हैं कि जी ये हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे कानों के पर्दे तो नहीं फट जाएंगे? नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी वोंट पंक्चर योर ईयर्स। इस वक्त भी आपके इर्द गिर्द अल्ट्रासोनिक आवाज़ें मौजूद हैं और ये जो स्पेक्ट्रोग्राम्स हैं ये आपके इर्द गिर्द बड़ी एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड रिवील करेंगे। उनसे आपके कानों के पर्दों को कुछ नहीं हो रहा। सो व्हाट कैन रियली रप्चर योर ईयर ड्रम्स इज़ वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। सो हाई वॉल्यूम के ऊपर जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो आपके ईयर ड्रम्स को रप्चर कर सकती है, ना कि हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी विद अ लो वॉल्यूम कैन नॉट हर्ट यू, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपके हेडफोन उतरवा दिए हैं ताकि आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। सो जस्ट कीप इट ऑन योर स्पीकर्स एंड यूल बी फाइन इंशाल्लाह। अभी तक कभी मेरे 3 साल से ये पढ़ाते हुए और उससे पहले कई साल से पढ़ते हुए और ऑब्जर्व करते हुए ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट के कानों से उसके पर्दे चिलमन की सूरत लटक रहे हों इस एक्सपेरिमेंट के बाद। पीपल सर्वाइव इट ऑल द टाइम, सो या यूल बी फाइन इंशाल्लाह। All right, so I just reset the video just in case कि एक दफ़ा दोबारा से हम ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। So now on your screen you see the spectrograms and now I'm about to start this tone generator. So it's at 7.8 hertz right now. अगर हमें कोई चीज़ सुनाई भी इस पर दे रही है तो that's just the speakers not doing a very good job rendering this sound because it's just 7 times the diaphragm is moving back and forth. तो ये clearly हमारे audible range में नहीं है. All right. We're at 22 right now. And you can observe these lines here. And my table is vibrating because मैंने इसको अपने speaker पे कर दिया था. So I'm just holding the speaker in my hand now. This is 46 hertz. This is 63 hertz. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये होगा, मेरी आवाज़ की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है that is around 110 hertz. When I'll reach 110 hertz, you will be able to hear a weirdness in my sound. और वो weirdness तब explain होगी जब हम इस topic को पढ़ रहे होंगे. But let's get there first. So I'm at 63 hertz right now. So male frequencies usually go from around 80 hertz to 150 hertz. Very deep voiced males are around 80 hertz and very low pitched males are around 150 hertz, although कि ये fixed नहीं है, इससे ऊपर भी हो सकती है. इसी तरह female sounds जो हैं वो usually they start around 150 and go to around 250, but again nothing is fixed. They could be a deep voiced female जिनकी आवाज़ जो है वो 150 से नीचे भी हो, but roughly the average comes around that. So I'm at 89 right now. Let's move on. This is 105 and maybe पता नहीं, मुझे यहाँ पर अब सुनाई देना शुरू हो गई है weirdness. आप लोगों को पता नहीं माइक कैप्चर कर रहा है या नहीं, but let me move to like 110 exact. It's hard to adjust it. So this is 109, pretty close to that. और शायद आपको थोड़ी सी wobbling मेरी आवाज़ में अब सुनाई दे रही हो. So I am hearing it very precisely. आप इस सेटअप को अगर रेप्लिकेट करते हैं अपने पास तो you should be also able to hear it. It's sort of like a robotic wobble in my sound. And these are actually called beats. लेकिन ये बात हम तब करेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे. All right, let me move on and decrease the volume a little bit. So this is 138. We are in the female sound range now, frequency range. So it is 180, 229, 274. बेबीज़ की जो आवाज़ है, ये बच्चों की आवाज़ अराउंड 250, 270 से शुरू होती है और मैंने अपने बच्चों में जो है वो 400 तक इसको नोटिस किया. येस, विद माई किड्स आई ऑफन हैव दिस स्पेक्ट्रोग्राम ओपन इन फ्रंट ऑफ मी. Yeah, weird things you do after you have done speech.
But yeah, 317, 350, 400, 550, 870, और शायद आपको फीलिंग अब आना शुरू हो गई होगी कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन. सो कुछ नहीं होने लगा. दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स. हमारा दिमाग ट्रेंड है कि हम हाई पिच साउंड्स को डिस्ट्रेस साउंड्स के साथ जो है वो कोरिलेट करते हैं. लाइक द साउंड ऑफ अ डिस्ट्रेस स्क्रीम, अ बेबी स्क्रीमिंग और समवन स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. तो हमारे जहनों में हाई पिच साउंड जो है वो जुड़ी हुई है विद डिस्ट्रेस एंड डेंजर एंड समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो दिस इज़ 1 किलोहर्ट्ज़. दिस इज़ द रेंज जिससे नीचे हमारा कान जो है वो फ्रीक्वेंसीज डिफ्रेंशिएट करने में बहुत अच्छा है. इससे ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज के डिफ्रेंशिएशन में इतने अच्छे नहीं हैं. सो लाइक अंडर 1000 हर्ट्ज वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक आई डोंट नो 300 हर्ट्ज एंड 301 हर्ट्ज और 300 और 305 हर्ट्ज. लेकिन ये सेम इज़ नॉट ट्रू फॉर लाइक 10,000 एंड 10,001 हर्ट्ज. हमारा जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो बहुत लेस प्रिसाइज होता चला जाता है एट हायर फ्रीक्वेंसीज. इस चीज़ के लिए एक नाम भी है जिसको हम MEL मैपिंग कहते हैं. सो इट्स अ लॉगरिदमिक मैपिंग आफ्टर 1 किलोहर्ट्ज एंड अ लीनियर मैपिंग बिलो 1 किलोहर्ट्ज. इसकी आगे जाकर काफ़ी तफसील से बात होगी. सो नाउ आई विल मूव ऑन अ लिटिल बिट क्विकली. आई एम एट 1 किलोहर्ट्ज राइट नाउ. सो आई विल मूव क्विकली टू से. नाउ यू सी कि मेरा मतलब क्या था डिस्ट्रेस के उससे. सो इट्स 3.7 राइट नाउ एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. आर्टिग्राम इसको प्लॉट भी कर रहा है. I am at 11 kilohertz right now, and I'm hearing a very sharp, very high pitched sound. Let me put the speaker down. All right, let's move on from 11. So this is 11.8, so nearly 12 kilohertz. But I can still hear it. I hope you can as well. This is 12.3 kilohertz. I can hear it, but barely. मेरी जो कान की अब लिमिट है वो आ रही है. सो आई एम 38 years old, और एट दिस एज यूजुअली पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर कैपेबिलिटी ऑफ हियरिंग हाई फ्रीक्वेंसीज. सो मुझे सुनाई ज़रूर दे रही है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सुनाई दे रही. दिस इज 13.34 kilohertz. I can still hear it. 14 kilohertz. But I'm not hearing it anymore. Like there is I know there is a noise which is being created by my speaker, but I'm not hearing the actual frequency now. Not very clearly. Like there's a vague impression that I'm hearing something. हो सकता है आपको सुनाई दे रही होगी. Most of you are younger than me. I'm at 15 kilohertz, 16 kilohertz, 16.9 actually, 18 kilohertz. So आप में से बहुत से लोग अब तक सुनना छोड़ चुके होंगे. आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा. कुछ को दे भी रहा होगा. But clearly the sound is there. You can see on the artigram. 19.1 kilohertz. And finally 20,000 hertz. So at this point, आप में से अक्सर को कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा. बहुत कम होंगे जिनको कुछ सुनाई दे रहा होगा. अब कितनों को आवाज़ आ रही है? अगर अभी भी आ रही है तो क्लियरली देयर इज़ अ डिफेक्ट. मैंने बंद कर दिया है यहाँ से इसको, एंड यू कैन क्लियरली सी देयर इज़ नो बैंड ऑन द स्क्रीन. मेरी क्लास में जब मैं ये करता हूँ तो बहुत से लोगों को इस पर भी आवाज़ आ रही होती है, बट यू शुड नॉट बी हियरिंग एनीथिंग. ऑलराइट, ये तो हो गया ना हमारे बेसिक एक्सपेरिमेंट्स जो हम करना चाह रहे थे इस मौके पे. लेट मी जस्ट पुट द स्पीकर अवे. बाय द वे, मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने मोबाइल की आवाज़ ऊंची करने के लिए आई जस्ट यूज्ड अ ब्लूटूथ स्पीकर. ओरिजिनली आई वाज ट्राइंग इट विद जस्ट द फ़ोन, लेकिन वो आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी कि हम क्लियरली उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते और मैं रिकॉर्ड करता. लिहाजा आई जस्ट यूज द स्पीकर. यू कैन यूज़ अ स्पीकर और यू कैन जस्ट यूज़ द स्पीकर ऑफ योर फ़ोन, और यू कैन प्ले इट ऑन द लैपटॉप इफ़ यू वांट टू. अच्छा, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं. मैंने आपसे कहा था ना कि दो तरह की आवाज़ें हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी. एक इम्पल्सेस और दूसरे नॉइज़. सो अब इन दोनों को एक दफ़ा देख लेते हैं. सो आई एम अबाउट टू लाइक मैं फूंक मारने लगा हूँ अपने माइक्रोफोन के ऊपर. सो वॉच व्हाट हैपन्स टू द स्पेक्ट्रोग्राम. ओके, लेट मी डू इट अगेन. सो एक चीज़ नोट किया आपने, तकरीबन सारी फ्रीक्वेंसीज फुल हुई हुई हैं नीचे से ऊपर तक. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ डीप बैंड बिलो, लेकिन पूरी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कुछ ना कुछ है. नाउ ऑब्जर्व दिस. और बाय द वे, अगर हेडफोन लगाया हुआ है तो मैं क्लैप करने लगा हूँ, डर ना जाइएगा. दिस वाज एन इम्पल्स. ऑलराइट,
Let me do something else. ये मैं टेबल के ऊपर आवाज कर रहा था, चुटकी की आवाज. Just making sound of a click with my tongue. आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक सारे बैंड्स फुल हैं with a deep line. So ज़्यादातर frequencies ये कह रहा है कि इसमें मौजूद इसको नज़र आ रही हैं. In fact, in theory, it should have all the frequencies. So, did you observe anything similar between an impulse and noise? दोनों के अंदर frequencies बहुत rich होती हैं. So the spectrum is very rich with frequencies. And that's the common thing जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेंगे as we go on in this course. ठीक है जी, let's stop the demo. All right, Ji. So I hope you enjoyed all of that. We are ready for the grand finale. We're done with almost everything. सिर्फ आपको दो एक videos ऐसी दिखानी है, immersive videos which I really love. और इन videos में somehow जितने हमने concepts cover किए हैं, they all like come together in these videos. So 1 ये binaural हैं, 2 ये Destin के Smarter Everyday के channel से हैं, और 3 ये Falcon Heavy के लॉन्च के वीडियोस हैं. सो हो सकता है आप में से किसी ने ये ऑलरेडी देखी हुई भी हों. दीज आर द बाइनॉरल ऑडियो रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ द लॉन्च ऑफ Falcon Heavy. Falcon Heavy जो SpaceX के जो नई सीरीज़ ऑफ रॉकेट्स हैं, इसके अंदर ये शुरू के रॉकेट्स थे जिसके अंदर जो बूस्टर्स हैं. सो इट वाज अ बेसिकली 3 बूस्टर्स वाला आपका रॉकेट है जिसके अंदर देयर इज अ सेंट्रल बूस्टर एंड देन देयर आर द 2 साइड बूस्टर्स. और जो फ़ायदा सिर्फ इस लॉन्च स्ट्रेटजी का था वो ये था कि ये बूस्टर्स वापस आकर लैंड करते हैं. So they deliver the payload in space and then the boosters come back down and they make a very elegant landing. So जो पहली चीज़ आपको दिखानी है वो ये है कि आपके सामने ये लॉन्च पैड होगा जिसके ऊपर let's say this is the Falcon Heavy with its 3 boosters. और यहाँ इससे बहुत दूर आपके ऑब्जर्वर्स खड़े हुए होंगे और यहाँ से ये बाइनॉरल ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे. So you will start seeing smoke and flames and everything here जब launch होगा और आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी. And then the Falcon Heavy will lift off and it will be up in the air and eventually the sounds will reach you and those sounds will be so immersive that at least it was for the first time for me that I really understood what it feels like when you're close to a rocket launch site. तो एक तो ये इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट होगा और आप टाइम भी करके देख सकते हैं कि वो रॉकेट आपसे कितना दूर है, एज्यूमिंग लाइक 330 या 340 मीटर्स पर सेकंड. तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर्स और किलोमीटर्स बिटवीन द रॉकेट एंड योरसेल्फ बेस्ड ऑन जब वो धुआं निकलना शुरू होता है और बेस्ड ऑन जब आपको आवाज़ आना शुरू होती है. ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट वीडियो. सो लेट्स वॉच द फर्स्ट वीडियो एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द सेकंड वीडियो. देयर आर 2 शॉर्ट वीडियोस बट दे आर वेरी फन वीडियोस. आपको बहुत मजा आएगा. जस्ट मेक श्योर यू वेयर योर हेडसेट्स. आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखें इसके लिए. इसमें कोई ऐसा वो नहीं है लाउड साउंड सडनली होपफुली नहीं है. ऊंची का मतलब अब रिलेटिव होता है, आप बहुत ही ऊंची ना कर दें, मतलब दरमियानी ऊंची आवाज़ रखें एंड देन एडजस्ट कर लीजिएगा. पर इसका मज़ा तब आएगा जब आप थोड़ी सी आवाज़ ऊंची हो, तब जाके इसका सही यू विल फील द फ्लेम्स के वो जो निकल रहे होंगे रॉकेट से, उनकी आवाज़ और उनकी जो आपको फड़फड़ाहट सी फील होगी. दैट्स रियली फन. सो वॉच दैट एंड कम बैक एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द सेकंड वीडियो व्हिच इज़ अबाउट sonic booms and then we'll be done with the lecture. Thank you. 10. All right, so now you have seen that. I hope you enjoyed it.
सो नाउ अगली वीडियो जो है वो री एंट्री की है. सो री एंट्री में ये होता है, सो द रॉकेट लीव्स और ये अपना पेलोड डिलीवर करके आता है, एंड देन द साइड बूस्टर्स दे बेसिकली कम डाउन, एंड एट री एंट्री दे आर ट्रेवलिंग वेरी फास्ट, दे आर सुपरसोनिक, और उस पॉइंट पर दे क्रिएट योर सोनिक बूम्स. तो अब आपको सोनिक बूम्स का आइडिया तो पता है, एंड योर ऑब्जर्वर्स आर समवेयर हियर. और वो सोनिक बूम्स क्रिएट हुई जो कि आने वाले रॉकेट्स के साथ ट्रेवल करते हुए जो बंच अप हुई आपकी ये सारे के सारे वेव फ्रंट्स आ रहे थे, और ये ट्रेवल करते करते इस तक पहुंचे. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ईच रॉकेट बूस्टर जब वो उतरता है तो वो एक ट्राईपॉड के ऊपर उतरता है. सो उसकी 3 लेग्स होती हैं, एंड ईच लेग बेसिकली हैज इट्स ओन सोनिक बूम. सो जब 2 बूस्टर्स उतर रहे हैं तो देयर इज सपोज टू बी 6 सोनिक बूम्स, लेकिन द वे दे ओवरलैप, एंड यू कैन आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि आप अगर जाकर स्मार्टर एवरीडे पे इस एक्चुअल वीडियो को देखें तो डेस्टिनी एक्चुअली एक्सप्लेन्स इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, एंड ही आल्सो शोज यू द स्पेक्ट्रोग्राम्स कि किस तरह से ये ओवरलैप इस तरह से होती हैं आवाज़ें सोनिक बूम्स कि यू हियर अराउंड 10 सोनिक बूम्स रादर देन 6 सोनिक बूम्स. सो इट्स रियल फन. ये भी मैं तो ऊंची आवाज़ में सुनता हूँ, आपने नीची में सुनना है तो नीची में सुन लें. सो थोड़ा सा वेटिंग टाइम होगा, आपको पहले बूस्टर्स उतरते हुए नजर आएंगे, एंड देन आफ्टर व्हाइल यू विल हियर द सोनिक बूम्स, एंड विद दैट विल स्टॉप द लेक्चर. सो इसके बाद बस मैं आपको खुदाफिज कहने के लिए वापस आऊँगा, एंड देन दिस लेक्चर विल स्टॉप. Sonic booms! Where are the booms? All right, Janab. So I hope you enjoyed that. That was our first introductory lecture. इसमें हमने बहुत कुछ कवर किया, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हाई स्कूल लेवल की फिजिक्स की थी. कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी थे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी थे. I hope you enjoyed them. In the next lecture, inshallah, we'll start looking at or at least the introduction of, not in the details, but the introduction of the mechanisms of speech production. और वहाँ से एक पूरे का पूरा समझे हमारे सामने एक एवेन्यू ओपन होगा कि how amazing that mechanism is, and how diverse these sounds are that we produce, and when it converts into languages, what an amazing thing a language is. ठीक है जनाब, तो अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह let's meet in the next lecture.